हाय ऑल, गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल, आई होप आई एम विजिबल। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। So audio and video is fine. Okay. So there is some information about this. Many people are. My team shared those messages with me. Many people are a little distressed about the physical geography note. They have been removed. Everyone, my team is working on reconciling the English and Hindi version of the notes. Do you get that? तो हम नहीं चाहते कि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग नोट्स जाएं। सेम टीचर है तो उनका रूपांतरण करना होता है। So that is why for some reasons we are making some amendments to that, and that is why it is taking some time. So within a week all those things will be resolved. So please do not be alarmed. We have always said कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलेगा। इस क्लास में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से ऑपरेट कर रहे हैं। So we wanted to serve both of them. That is why we have removed them, and they will be coming. So I had a word with my team, and they are in the final stages of it. So you will be given all those notes. So please do not be disturbed by that. Yes or no? Sir, why Western disturbance is still there? Okay. So any disturbance that is coming from the Western India, from the western part of the Asian part, and especially from Mediterranean Sea, which carries with itself some moisture, and it is like a low pressure coming towards India, is generally referred to as Western disturbance. Now, Western disturbance, their frequencies are very high during the winters. During summers, we should not be getting many Western disturbances. However, it is the jet streams, the subtropical westerly jet stream, हमारी जेट धाराएं हैं, वो इन लो प्रेशर सिस्टम्स को इंडिया की तरफ लेकर आती हैं। तो जेट स्ट्रीम हमेशा सीधे रास्ते में नहीं ट्रैवल करती, उनका इस तरह का मोशन होता है। दे हैव अ वेवी मोशन। तो समटाइम्स दोज वेव्स, उनका लोअर पार्ट जो उनका मियांडरिंग पार्ट है, समर्स में भी, दो द जेट स्ट्रीम हैज शिफ्टेड नॉर्थ, इमेजिन माई हेड इज इंडिया एंड जेट स्ट्रीम हैज शिफ्टेड नॉर्थ, तो नहीं आना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बट अगर जेट स्ट्रीम इस पाथ में जा रही होगी तो यू विल फील थोड़ा सा आ सकता है। डू वी गेट दैट? आप देखेंगे कि जेट स्ट्रीम की फ्रीक्वेंसी, इफ यू आर फॉलोइंग द वेदर रिपोर्ट्स ऑल्सो, द फ्रीक्वेंसी हैज गॉन डाउन एंड देयर इंटेंसिटी हैज ऑल्सो गॉन डाउन। ठीक है, बट फिर भी एक जनरल जार्गन में जो भी वेस्ट से डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह दिया जाता है। आई होप यू गेट दैट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वीडियोज एंड आई होप यू यूज योर वीकेंड वेल। बहुत अच्छी बात है। तो पीसीएस में रियो ग्रांडे का क्वेश्चन आया। चलिए, ऑल दोज थिंग्स आर गुड। आई हैड गिवन यू सम होमवर्क्स। आई टॉक्ड अबाउट दिस प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? 0 डिग्रीज। तो दिस इज योर 0 डिग्री। इफ यू आर लुकिंग एट, ये यूके को टच करेगा, फ्रांस में होता हुआ जाएगा और स्पेन में। तो ऐसा किसी ने लिखा है कि सर ये यहाँ से होता है, एंड देन यू गॉन इनटू अफ्रीका ऑल्सो। वेरी गुड इफ यू हैव डन दैट। ठीक है, everyone okay? Are we clear? You're talking about Europe, and एक टेस्ट भी लेना है। I have to test you on Europe. An introduction to Europe has been done. We had looked at the water bodies surrounding Europe, and we had also looked at what was inside Europe in a broad sense. But आज हम उनको specific करने वाले। Is everyone okay? My request again is keep your atlases with you, keep identifying them. ये आपकी श्रुति और स्मृति memorizing में भी काम करेगा, understanding में भी काम करेगा. All the popular debates which are there, the economic debates, the cultural debates, I bring a hint of them here, but वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसके बाद भी करेंगे। ठीक है, और जो लोग मैप कर रहे हैं तो आप खुद ही देख चुके होंगे कि बहुत सारी चीज़ें अब याद नहीं करनी पड़ रही हैं, आ जाती हैं। I remember long years ago, probably like 4-5 years ago, a student came and he had cleared his examination, शायद UPPCS या BPSC, some of them.
He said सर सारे नाम तो याद नहीं होते थे बट हमेशा वो एक उनका पहला लेटर याद हो जाता था कि ये है, तो एग्जाम में 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं पे एक मैजिकल क्लिक विल कम, हाँ ये वाला ऑप्शन है. तो डू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड दैट विल हैपन. इज एवरीवन ओके? तो वेयर आर वी नाउ? तो टेस्ट पे बात करेंगे. टेस्ट से पहले मेरा एक क्वेश्चन था. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. समबडी हैड पोस्टेड, मेरे पास एक डाउट आया, मेरी टीम ने शेयर किया वो. सर हाउ कैन रिवर्स फ्लो इन यूरोप? हाउ कैन रिवर्स फ्लो इन यूरोप? दे मस्ट बी फ्रोजन. I looked at that doubt, I looked at the name also. Sadly, that doubt came from a student who has done general geography also with me. तो बड़ा बुरा लगा कि यार यूरोप में नदियां क्यों फ्रोजन होंगी? Why would the rivers be frozen? तो आप सोचिए कितना अजीब सा एक डाउट है. The doubt is why rivers are flowing in Europe and they should be frozen. So when we are talking about frozen, that means frozen means ice. So tell me one thing, if this is earth, if this is 0 degrees, 0 to 30 degrees, 30 to 60 degrees, yes, this is tropical, this is temperate, and this is frigid. Simple. I hope this is not technical. ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है ना. ये तो किसी भी बच्चे को जिसको जनरल ज्योग्राफी थोड़ी भी पता हो, थोड़ी सी भी पता होगी, जानते हैं 7th या 8th में बता दिया जाता है. ट्रॉपिकल क्या होता है बच्चों? ट्रॉपिकल इज वार्म, टेम्परेट इज कूल, यस, एंड फ्रिजिड इज कोल्ड. ऐसा भी है. आई होप आई हैव नॉट सेड एनीथिंग बिग और टफ. मुझे बताइए A, B and C, where can you expect ice? Where would you expect ice? Where would you expect ice? जल्दी से बताइए. तो कहां पर आप आइस एक्सपेक्ट करते हैं? ABC में. Everyone in the class will say C. बहुत अच्छी बात है. You're absolutely correct and this is very common sensical thing. आइए अब हम इसमें यूरोप बनाते हैं. Let us make Europe here. बनाए यूरोप. So let us draw Europe. This is 30 degrees. ऐसा आता है यूरोप. Now tell me, why should this river be frozen? 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 Anywhere, कोई भी नदी क्यों फ्रोजन होगी? आप खुद सोच के बताइए. So the student who has asked this question, has done general geography with me and is prone to asking such questions. Now the problem is that if the teacher anywhere points it out, then there are people who will write such comments कि हम आए क्यों हैं प्लेटफॉर्म पे, आप ही का तो काम है जवाब देना. मैं तो खुद अपने लिए फीडबैक दे रहा हूं कि when this has been told to us very clearly, why does this idea come कि how can rivers flow in Europe? They must be frozen. आप बताइए क्या आपको लगता है कि यूरोप में फ्रोजन होगा? यूरोप में फ्रोजन होगा? अच्छा चलिए एक बार को मैं मान सकता हूं, विंटर्स में, when winters are there, severe winters are there, कुछ रिवर्स फ्रोज करेंगे and especially the rivers which are flowing towards Arctic. Yes or no? The ones which are flowing towards the Arctic, I understand because यहीं पर हमने, that is why we took what? 60 degrees north का latitude हमेशा आपको याद कराता हूं. Do I do that or not? Yes or no? Do I do that or not? So I do that. So my question and my request is कि देखिए, there are so many students who are learning in this class who may not be on the chat, who may not be putting their doubts, but वो कहीं पर अपने logic को they apply their logic, they connect one and one. तो इसलिए ये latitude longitudes बनाए जाते हैं. When I make Europe, then also I always insist on these latitude longitude. But what is happening is कि उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उन latitudes को respect नहीं करते.
So those latitudes are given for a particular reason. I from this whole discussion I want to come to a conclusion कि आपके इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स. व्हाट आर द बेसिक्स? द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट आर क्लाइमेट और वेदर ऑफ अ लोकेशन आर वेरी सिंपल. बताऊं, बहुत सिंपल. I am telling you and you can note this down that you should be in a position to guess the temperature conditions over there and you should be able to guess the precipitation conditions. ठीक है, दिखा रहा हूं. and because I have done 4 continents and I have not talked about the atmosphere, so time to bring the atmosphere. And this question, I have no objection to such a question. I am just taking it as a feedback for my own teaching. कि यार अगर बच्चे को हमने इतना बेसिक बताया, warm, cool और cold, why would a student who's attended those classes doubt कि यार यूरोप में नदियां क्यों फ्रोजन? तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं. And I want all of you, I also want all of you to now appreciate the atmosphere of these continents. तो वैसे तो आज हम क्या बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूरोप, बट कैन आई टेक सम टाइम टू ब्रिंग दैट एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर? आई होप यू विल बी विद मी ऑन. यस. तो टेम्परेचर में हम क्या जा रहे हैं? टेम्परेचर में 3 वर्ड रहेंगे हमारे पास: वार्म, कूल, कोल्ड. एंड प्रेसिपिटेशन में क्या वर्ड होंगे हमारे पास? मिड, सेमी एरिड and arid. Is everyone with me on? Sir, this exercise we have done in general geography also. बिल्कुल किया है. अब now I am going to put that again because ऐसा question सुन के I feel कि we have theoretically appreciated that idea, but उसको practical में नहीं लगा पाए. Our mind was not able to transfer that. So I have another opportunity. तो ये मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं. और ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो प्लीज ये मत सोचिए कि टीचर क्यों हमसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है. थ्रू दिस क्वेश्चन, थ्रू दिस एरर, आई वांट टू हाईलाइट कि कहां पर लोग अपनी मिस्टेक्स करते हैं. तो प्लीज इसे पर्सनल बनाकर जो आप कमेंट करने लगते हैं वो सब आते हैं हम लोग के पास भी. तो हमें लगता है यार क्या मतलब है इस चीज का? आर यू नॉट गेटिंग द बिग पिक्चर और नॉट? इन द एंड इट इज नॉट अबाउट विन और लूज. इट हैज टू बी विन विन. इट हैज टू बी विन विन. वी वॉन्ट एवरी स्टूडेंट जो भी KGS में बैठा है वो अपना बेस्ट निकाले तो सही, कोशिश तो करे. और अगर वो बेस्ट नहीं निकाल रहा, क्या टीचर को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उससे सवाल पूछना चाहिए, जवाब करना चाहिए. और टीचर के पास क्या हक होना चाहिए? भाई कैसा सवाल पूछ रहे हो, पिछला कहाँ आपने कनेक्ट नहीं किया. सो दैट इज व्हाट आई वांट एंड उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं. तो वार्म क्या होता है? जनरली जो एरियाज में टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता थ्रू आउट द ईयर्स ये वार्म होते हैं. तो सर ये पता कैसे चलेगा? हाउ विल वी गेट टू नो? सर आई डोंट हैव थर्मोमीटर. तो आई कैन गिव यू अ हिंट. ट्रॉपिकल एरियाज, इक्वेटोरियल एरियाज आर वार्म. चलेगा? ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरिया या 0 से 30 डिग्री तक वार्म होता है. सिंपल फॉर्मूला. आई होप यू आर राइटिंग ऑल्सो. Now there are people who say सर हम नोट्स कैसे बनाए? यही लिखते रहो ना, यही लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखते रहो. आपके लिए टेबल बनाया, टेबल इटसेल्फ इज द वार्म. जनरली ये है. ठीक है. कोल्ड क्या होगा? कोल्ड इसमें क्या होगा? द टेम्परेचर विल ऑलवेज बी लेस देन 10 डिग्री से साल. इनफैक्ट देयर विल बी सब जीरो ऑल्सो. देयर विल बी सब जीरो क्या होता है? लेस देन 0. तो विंटर्स तो लेस देन 0 है, बट थ्रू आउट द ईयर दैट इज द कोल्ड. तो ये कौन से हैं? कैन आई से दीज आर 60 to 90? एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 60 फिर भी कम होगा, 60 विल बी वार्मर कंपेयर टू 90. एंड कूल इज इंटरमीडिएट. तो कैन आई से कूल वाला क्या होता है? कूल इज 30 to 60. और इसका भी वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड इट इनटू वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट. ऐसा भी कुछ बात हुआ है? एवरीवन ओके? ठीक है. तो ये एक चीज है, बट ये थ्योरी में आई विल जस्ट पुट इट टू प्रैक्टिस सो दैट ऐसे क्वेश्चन ना आए.
This question is simply coming out of you not being able to connect theory with practical. So my job to do that for you. अच्छा, humid क्या होता है? जिसके पास बहुत सारी रेन हो. I would generally say an area which is more than 100 centimeter of rainfall annual. ये सब averages of year हैं. When the rainfall is कोई कह रहा है जॉटिंग करें इसको. मैंने कहा बेटा जो स्क्रीन पर है वो तो पक्का करो. स्क्रीन पर है, प्लीज कीप जॉटिंग इट. So humid is somewhere where there is a lot of rainfall that is humid. Okay, so 100 centimeter and above. So how would I get to know? I will help you in this. I'll help you in this. Achha, somewhere where the rain is less than like 30 centimeter, वो desert हो जाता है 30 centimeter. तो यहां पर क्या हुआ? Can I say 30 plus and 100 minus? ये सेमी एरिड. और बल्कि 100 भी नहीं कहूंगा इसको, तो मैं 60 पर ले जाता हूं. जनरली 60 के आसपास होता है. 30 to 60 सेंटीमीटर ये सेमी एरिड होता है. और इसमें भी वी आर लुकिंग एट 100 में भी अराउंड दैट. इज एवरीवन ओके? इज एवरीवन ओके? अभी क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए, कैन वी गो बैक टू नॉर्थ अमेरिका एंड ट्राई टू फाइंड द क्लाइमेट एटमोस्फियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका. आर यू विलिंग टू गो विद मी ऑन दिस? नॉर्थ अमेरिका चलते हैं. कैन वी ड्रॉ नॉर्थ अमेरिका एवरीवन? नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करते. नॉर्थ अमेरिका quickly everyone, let us draw North America. And if I may help you, let me tell you how we will be doing this. We'll take a page, we'll turn it around, and we will write atmosphere. And what we will do is we will make this, we will also make this South America. चलेगा? तो बट आज तो यूरोप कर रहे थे बेटा. आई एम नॉट here for doing Europe or North America. I am here to do world geography, world physical geography. I have told you something about the lands of these continents. Now I want to today talk about the climate. थोड़ा वहाँ का मौसम के बारे में आपको जान पहचान कराना चाह रहा हूँ. ठीक है? तो नॉर्थ अमेरिका के PDF प्लीज प्रोवाइड करा दो. के बेटा इसके बारे में मैंने क्लास के स्टार्ट में बात किया है. अगर आपका मिस हो गया हो तो देख लेना. ठीक है? एवरीवन, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? वी हैव गॉट 4 वर्ड्स, 6 वर्ड्स रादर. तो एक तो है वार्म, कूल और कोल्ड. ये पता करने का सिंपल तरीका है. टेम्परेचर का पता करने का सिंपल तरीका है. फाइंड द लैटिट्यूड द कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड. तो अब हम क्या करेंगे एवरीवन? वी विल लोकेट इक्वेटर. तो इक्वेटर वाज समवेयर हियर. यस, टॉपिक ऑफ कीप ड्राइंग. आप भी ड्रॉ करिएगा. आपको भी, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस विच आई एम डूइंग. दिस वॉज टॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज समवेयर 30 डिग्री. 30 degrees north. Do we get that? This is where we had, I think, the Arctic Circle. So 60 कुछ यहां पर होना. Is everyone okay? Perfect. So now everyone, अब आपको मुझे बताना, कैन आई क्विकली अप्लाई सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ. ये मेक्सिको की कैपिटल है, मेक्सिको. ठीक है? मेक्सिको. यहां पर आएगा शिकागो. Here is Chicago. And this place, if you remember, ये हमारी प्रोविंस थी उनावत. Remember? Everyone, if I put X, Y and Z, do you know the temperature? Quickly.
डू यू नो द टेम्परेचर? जल्दी से बताइए और मुझे बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्मार्टली टेल मी दिस? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। नो नो, टेल मी विच इज व्हाट। अब आपके पास 3 वर्ड है ना, वार्म, कूल, कोल्ड। जल्दी से बताइए, नाम लिखिए और बताइए कौन सा वार्म, कौन सा कूल, कौन सा कोल्ड। सर मेक्सिको इज वार्म, शिकागो इज कूल एंड नूनावत इज कोल्ड। इज एवरीवन विद मी? एवरीवन विद मी? भाई ऑल यू नीडेड वॉज दिस ओनली। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पर एक और टाउन डाल दिया, सपोज आई पुट वन मोर टाउन ओवर हियर, पेंसिल्वेनिया, योर आंसर इज स्टिल देयर। आपको तो सिर्फ लैटिट्यूड पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैंने यहां पर डाल दिया टेक्सास, टेक्सास स्टेट कैसा है आप ये डाल देंगे। अगर मैंने अलास्का डाला, अलास्का द स्टेट, एवरीवन नोज द क्लाइमेट और नॉट? सोचिए, दिमाग लगाना बस, लैटिट्यूड पता होना चाहिए। यू वुड सी दैट वेन एवर आई एम टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ अ मैप, इट इज नॉट अ ड्रॉइंग क्लास। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट दोज लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड मेरी बहुत मदद करने वाले, करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, तो अब मेरे पास प्लेस है। द प्लेस इज समवेयर हियर। आई एम इन विच कंट्री? आई एम इन कोलंबिया। मैं कोलंबिया में हूं, ठीक है, मैं कोलंबिया में हूं और यहां पर कोलंबिया में यहां पे ड्रग्स ले जा रहे हैं लोग ए में, and I am at a place here where you know that क्या था वो, river Negro meets Amazon, एक पोर्ट था ना, रिवर पोर्ट मनाउस, वो कैसा होगा? यहां पर क्या है? ब्रासिलिया। हाउ इज ब्रासिलिया एज अ सिटी? एंड देन आई ऑल्सो हैव पैराग्वे की कैपिटल क्या थी? असेंशियन, इफ यू रिमेंबर, असेंशियन। जल्दी से बताइए इनका टेम्परेचर कैसा होगा? डू यू हैव एनी वेज ऑफ टेलिंग हाउ विल द टेम्परेचर बी फाउंड आउट? साउथ अमेरिका, इफ somebody comes and challenges you, you are a geography, वर्ल्ड geography आपने सचिन सर के साथ किया, जल्दी से बताओ टेम्परेचर क्या होगा असुंशन का, तो आप बता सकते हैं। तो आपको वैल्यू तो नहीं बतानी है, आप क्या करेंगे? यू विल फर्स्ट लुक एट इक्वेटर। भाई ये तो ये इक्वेटर है, सी के जस्ट नीचे खत्म होता है कैप्रिकॉर्न, and if that is 23.5 degrees south, so then this must be 30 degrees south. Answer is, ये सारे तो वार्म होंगे, तो what is Colombia going to be? सर यहां वार्म टेम्परेचर होगा because this is tropical area. Equatorial, सर मनाउस भी वार्म होगा, ब्रासिलिया भी वार्म होगा, they all are going to be warm. Perfectly okay. तो बट असुंशन जो है ना सर, ये कूल हो सकता है बिकॉज दिस इज अराउंड 60 डिग्रीज, यहां पर 60 आ रहा है कुछ, एंड आई डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट विद 60, लगभग यहां पर है, तो कूल होगा। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड इट वेरी इजी? Somebody saying, sir, Ascension would be cool, but not very cool. See, I am not going into the degree cool, very cool or whatever. Just a simple formula, does it tell me everything? Temperature के बारे में पता चलता है कि नहीं पता चलता? So, any continent, if you want to find the climate, first find these important latitudes, and while training you, while making you learn all those things, वो हो जाएगा, ठीक है? Are we okay with that? We are okay with this? Yes, more or less. ठीक है, निरंकुश यहां पर पूछ रहे हैं कि सर प्लेटू की वजह से क्या चेंज नहीं हो जाएगा? तो एवरीवन आई वुड वांट टू से कि मैंने अभी लोकेशंस ऐसे लिए हैं कि जहां पर अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज फ्लैट, डेफिनेटली इफ ऑल्टीट्यूड कम्स इट विल प्ले अ रोल। यस और नो? से फॉर एग्जांपल द कैपिटल क्वीटो की जब हम बात करते हैं, क्वीटो जो आता है यहां पर इक्वेडोर की कैपिटल, वो एंडीज में है भाई, ठंडी कैपिटल है। Yes or no? And how many of you remember कि मेक्सिको भले ही वार्म है, but within the warm, because of the plateau, is it more moderate or not? Remember?
मेक्सिको में why people are living in that. So all those things are there. तो पहला रूल तो करना पड़ेगा. फर्स्ट रूल इज एवरीवन ओके. फर्स्ट रूल इज एवरीवन ओके. ठीक है ना. तो किसी ने कहा सर असुंशन तो 30 के ऊपर है, देख लेते हैं. अगर 30 के ऊपर है तो हम गलत हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम. असुंशन 30, हाँ 30 के ऊपर है तो असुंशन तो यहां पर है भाई. तो असुंशन इज दिस. तो असुंशन विल बी वार्म. असुंशन विल बी वार्म. और नीचे आ जाते हैं तो यहां पर क्या ले रहे हैं हम. ब्यूनस आयर्स में डेलिबरेटली नहीं लेना चाहता हूं. तो वी आर टेकिंग कॉर्बोडा. ORBOD. परफेक्ट. तो व्हाट इज नीडेड, आपको मैप पता होना चाहिए. मैप में वो लोकेशन कहां है. ठीक है. आई एम वेरी श्योर यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू असुंशन का क्लाइमेट बताइए, बट ब्रॉडली अगर आपको कंट्री का क्लाइमेट हो, इज द बेल्ट अ गुड फॉर्मूला टू डू दैट. इज द बेल्ट अ गुड फॉर्मूला टू डू दैट. इज एवरीवन ओके. मेनी पीपल आर सेइंग सर असुंशन माय मैप इज शोइंग, वो ऊपर है. ठीक है, ऊपर है तो हमने असुंशन को वो चेंज करना ही पड़ेगा कि यार वो ट्रॉपिकल बेल्ट में तो वार्म में आएगा. एंड देन आई ब्रॉट दिस कॉर्बोडा. कॉर्बोडा इज दिस. इज एवरीवन ओके. ठीक है, आर वी ओके. तो ये रूल किसके लिए, अज्यूमिंग एवरीथिंग इज फ्लैट. बट इफ देयर इज ऑल्टीट्यूड, अगर ऊंचाई है तो naturally with height what will happen, the cooling will happen. So we saw that Mexico being in the plateau, height की वजह से भी there are better conditions. coast पर लोग नहीं रहते. Aztecs were a highland thing. Remember altiplano. Everyone okay. चलिए यहां तक आ गए. अभी हमने क्या बात किया, we are talking about atmosphere. And we have played with 3 words, warm, cool. Make it a rule. कहीं पर भी कुछ है ये हो जाएगा. अच्छा, अब हम ह्यूमिडिटी में पढ़ते हैं. ह्यूमिडिटी में we have what, we have humid, semi arid and arid. ठीक है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू राइट नाउ फ्रॉम what you have studied, you can tell me what will be the condition in this island Vancouver में क्या कंडीशन होगी, ह्यूमिडिटी कंडीशन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट न्यू फाउंडलैंड. एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी इधर यहां पर दिस पॉइंट एट इक्वेटर. And how many of you can tell me what will be the humidity at a place called Iqaluit. एरिका भी बताया था मैंने आपको, एरिका, इक्विक. ठीक है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द कंडीशंस इन कैलिफोर्निया स्टेट. कैलिफोर्निया ह्यूमिडिटी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू मैच इट. मुझे नाम देना है जगह का. माय क्वेश्चन इज Vancouver number 1, Newfoundland number 2, California number 3, Erica number 4, at equator number 5. चलिए बताएंगे, कौन बताएगा. शुभम सिंह XYZ लिखिए. शुभम मैंने XYZ की जगह बेटा 1 2 3 4 5 कर दिया. यू सिलेक्ट. वन 2 3 4 5 1 नंबर के साथ लिखिए सो दैट आई नो. तो कोई बोल रहा है वैंकूवर इज सेमी एरिड. एक आंसर है हमारे पास, वैंकूवर इज सेमी एरिड. बात है, वैंकूवर इज सेमी एरिड. आकाश का है वैंकूवर इज एरिड. वैंकूवर एरिड भी हो गया. सेमी एरिड, एरिड होगा तो एक ही. So all are humid. All 5 are humid.
all 5 are humid. Good, I get that. क्या मुझे Vancouver added. Everyone, thank you. Stop. All wrong. All. Everyone, tell me one thing. Tell me one thing. Can I do this discussion? Can I do this discussion with a student who has just started world geography? क्या मैं ये कर सकता हूँ? Or do you all appreciate that this is a advanced class? Do you all appreciate that this is an advanced class? Do you all appreciate? और जिन लोगों ने students who have already done थोड़ा सा जनरल ज्योग्राफी भी किया होगा एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो अपना मैप्स देख रहे हैं वो इसमें ज्यादा समझ पाएंगे. यस और नो? So students who have come for the first time to the class, today is my 3rd class, how do I cover up? Unable to join Telegram channel. Will they be able to understand? नहीं हो पाएगा. ठीक है. So there are students who write in the chats. कि सर ये प्लेटफॉर्म पे आए, इन्हें सर्व करो. You think ये आप कहीं पर भी आएंगे तो टीचर को इस चीज पर आप दोषी बना? आई एम जस्ट दैट. आई डिड नॉट टेक एनी नेम, बट उस पर भी आता है कि टुडे इज माय 3rd क्लास, हाउ विल आई कवर अप? डू यू थिंक दैट आई एम सपोज टेल दैट? और मैं बोलूं भाई अरे चचा तुम खुद ही कर लो, तो यू से कि अरे टीचर ने ऐसे बोल दिया, बच्चे का हौसला टूट गया. इज इट फेयर? टुडे इज माई 11th क्लास, तो 10th क्लास के बाद कैन आई टेक द लिबर्टी ऑफ गोइंग एडवांस? कर सकता हूँ? बिकॉज ऐसे भी कमेंट आते हैं और फिर मेरी जब टीम बात करती है तो वी क्या कर रहे हैं. टीचर वांट्स विद एवरी क्लास वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. एंड अब 10 क्लासेस होंगे, अब सीनियर मानता हूँ आपको यार, आई एम अज्यूमिंग यू एज सीनियर्स, तो इसलिए बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो प्लीज ये वाले जब आप लिखते हैं when you write these things, so now what I will do is I will write them here. जो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं I'll write them here and I'll leave it to you so that आप मुझे ना बोलें कि भाई टीचर ने ऐसे बच्चे को बोल दिया. क्या मजाक कर रहे हो यार? आप पूरे क्लास में आकर बोलते टीचर फालतू पढ़ा रहा है एंड ऑल दैट. आपके पास पूरी लिबर्टी है. आपको जो रियल क्वेश्चंस है उनके आप आंसर नहीं दे पा रहे हो. टीचर वांट्स टू ट्रेन यू इनटू दिस, और यहाँ पर हमें ये भी आंसर करना पड़ेगा. क्यों? वरना हम प्लेटफॉर्म पे आए ही क्यों? हम कहीं और चले जाते. भाई जहां भी जाओगे जो क्लासेस चल रही उसमें लाइट तो बांधोगे कि नहीं बांधोगे? तो ये वाले जब आप डालते हैं तो सोचिएगा कि मिलेगा क्या, विन लूज से क्या फायदा होगा, है ना? हम ये चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दें, और अपने बेस्ट में अगर आप कहीं से भी पढ़ाई शुरू करते, भाई पिछली क्लासेस करनी होंगी ना, तो दैट विल हेल्प यू. तो पहली चीज, ये वैंकूवर क्यों गलत हो रहा है? तो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के लिए रूल्स बता रहा हूं. इन एटमॉस्फेयर, ठीक है. हाउ डू वी गेट दैट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं फॉर द जीएस स्टूडेंट्स, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु जॉइंड मी फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी. आई प्रॉमिस देम कि मैं बीच में भी कराऊंगा वो, तो डोंट वरी, फिर से हो जाए. इज एवरीवन ओके? तो पहला प्रेसिपिटेशन होता है, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल. फर्स्ट वन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये कहां पर होती है? व्हेन द लैंड गेट्स हीटेड अप अ लॉट. जब कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसको संवहनीय वर्षा भी कहते हैं, संवहनीय वर्षा, ये लिखते रहिएगा. एंड ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं. जब लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, वार्म लैटिट्यूड. कौन से लैटिट्यूड है? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन. इन बेल्ट्स में, आई होप यू आर राइटिंग, ये सब लिखते भी रहेंगे. इन बेल्ट्स में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई, what will happen is the water which is present anywhere इस भूमि में कहीं पर भी पानी होगा, वो वाष्पित हो जाएगा. It will get evaporate. Yes or no?
the water will get evaporated, so I am writing evaporation will happen. When it rises up, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, the temperature will fall. Temperature will fall. Yes or no? अच्छा, ये सारी ऊपर क्यों जा रहा है? Why is it going up? Because this is warm air and warm air is lighter. Yes or no? हल्की चीज ऊपर उठती है ना. Warm air is lighter. It will start rising up. It starts rising up and it cools. ऊपर जाने पे चीजें ठंडी होती है. Yes, this is called the lapse rate. ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना ह्रास दर कहलाता. This is the lapse rate. And a point will come that the temperature is very cold. It goes below dew point. Dew point बोल दीजिए या कंडेंसेशन पॉइंट आ जाएगा. कंडेंसेशन पॉइंट. तो उससे क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे. Clouds will be formed. So what is needed for this? Evaporation is needed. Who will cause evaporation, बच्चों? Who will cause evaporation? Sun. सूर्य देवता. Sun will cause. And which belt are we? Equatorial belt, tropical belt, subtropical belt. You know that sun rays fall almost vertically on this or with less inclination and it brings a lot of heat. So क्या होगा? Land भी heat होगा. Land will get heated up. The water will get heated up. It will evaporate. Evaporate करेगा, condense हो जाएगा, बारिश हो जाएगी शाम को. You and I live in India. कौन सी बेल्ट में बच्चों हम? सर हम तो ट्रॉपिकल बेल्ट में हैं. तो आप बताइए, आपके शहर में गर्मी पड़ती है और अगर वाटर बॉडी हो तो वो इवेपोरेट होकर शाम को आंधी आती कि नहीं आती? पिछले कुछ दिनों में आंधी आ रही है, बादल बन जाते कि नहीं बन जाते? दोज आर कन्वेक्शनल क्लाउड्स. दोज आर कन्वेक्शनल क्लाउड्स. डू यू गेट दैट? वेरी नॉर्मल, हम सब ने देखा है कन्वेक्शनल क्लाउड्स होते हैं. इक्वेटर पर तो इट इज सो कॉमन दैट इन ब्राजील इट इज कॉल्ड 4 o'clock रेनफॉल. दैट एवरी डे दिस हैपेंस. इज एवरीवन ओके? ठीक है. महेंद्र राठौर जी, सर नॉर्थ अमेरिका के पीडीएफ प्लीज सेंड कर दो. तो बेटा महेंद्र, क्लास के स्टार्ट में हमने कुछ कहा है, पीडीएफ सेंड करो. ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका मैं उत्तर पहले दे चुका हूं. एंड इफ आई डोंट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, और अगर मैंने इस क्वेश्चन में कह दिया बेटा ये क्या इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो देन देयर आर स्टूडेंट्स हु विल पुट चैट. फिर हम प्लेटफॉर्म पे आए क्यों हैं? आप हमारा जवाब दो. भाई गुलामी थोड़ी की है. टीचर का काम था कि आपको हेल्प करना. बट व्हेन यू राइट दोस थिंग्स, नो ऑल्सो थॉट यू नो लाइक कि क्या वो जायज था? इज एवरीवन ओके? तो बेटा पीडीएफ की हमने बात कर ली. पीडीएफ हम रिकंसाइल करें, विद इन अ वीक आ जाएगा. तो दिस रेन हैपेंस. इस रेन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस रेन कॉल्ड? ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, as the heat reduces, will this rain increase or reduce? We want heat to be there. Heat should be there. A lot of heat should be there. But if the heat reduces, will the convectional rain increase or reduce? अगर नीचे लैंड गर्म नहीं हो पा रहा ज्यादा, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में वेयर कैन आई एक्सपेक्ट मोर कन्वेक्शनल रेन, समर सीजन और विंटर सीजन? समर सीजन और विंटर सीजन? द समर सीजन. वी नीड मोर हीट. परफेक्ट. So everyone, just good, and you know that I have this habit of showing things practically to my students so that वो दिमाग में बैठ जाए. आप लोगों को क्या चाहिए? कोई पैराग्राफ लिखवा दे. मैं कह रहा हूं पैरा क्यों लिखवाना है? आपके दिमाग में बैठ गया परमानेंट. You have a concept. At least tell me, you know, like how many of you, if you are to teach your younger brother or sister addition, आप notes देंगे? आप notes देंगे क्या addition के? सिखा देंगे ना. इफ यू नो, आप सिखा देंगे ना. यार मुझे आता है वो, मैं सिखा दूंगा. बट हमें टेंशन है कि नोट्स आ जाए. तो बच्चों ये इक्वेटर है, ये 30 है. यस. विच रेन विल हैपन ओवर हियर इन दिस बेल्ट? कैन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शनल रेन? इज एवरीवन ओके? नाउ दिस डॉट मीन्स रेन, अमाउंट ऑफ रेन. दिस डॉट मीन्स अमाउंट ऑफ रेन. अभी बनाएंगे नहीं, पहले देखेंगे. This dot means amount of rain. Yes. Can anyone tell me why the dots are not uniform? Where are dots more? बच्चों, where are dots more? Then near equator the dots are more. Yes or no? Yes. Near the equator the dots are more.
and as we are going away from the equator, what is happening? Rainfall decreases. अब ये बताइए, this whole page which is in front of you, does it not explain everything? इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है? And this is jotting. If you really feel like writing, I do understand everyone has his or her different style. अगर आपको लिखना है तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, सम्मेनीय वर्षा क्लास 11th में मैंने आप लोगों के साथ करवाई है, उसमें भी लिखा है कन्वेक्शनल रेनफॉल. ऐसे ही गूगल करेंगे तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाएगी, उस पर लिखा होगा व्हेन द हीट इंक्रीजेस द वाटर vapor evaporates, it cools, condenses and causes rain, and this is called convectional rainfall. Is everyone okay? Is everyone okay? True. And we know that the temperature falls with, भाई अब किसी ने कहा, देखो एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ही आया, सर डज टेम्परेचर फॉल विद लैटिट्यूड. अब एक बात बताओ, दिस इज इक्वेटर एंड एज यू गो टुवर्ड्स द पोल, डज द टेम्परेचर फॉल? Does the temperature fall? अच्छा, ये बहुत बेसिक चीज है, टीचर स्टार्ट ही इससे करते हैं कि सन की रेज इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं एंड पोल्स पर दे आर स्लांटिंग, तो दैट इज वाई यहां पर कोल्ड होता है. ये कितनी बार बताएं क्लास में? अगर नहीं बताएंगे तो बेशर्मी से आप लिखेंगे क्या हम प्लेटफॉर्म पे किस लिए आए थे. लिखेंगे तो है, लिखेंगे तो आप जरूर है, तो आप लिखिए. मैंने फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि सर क्या लैटिट्यूड के साथ टेम्परेचर फॉल करता है? एज अ रूल इट विल फॉल, एज अ रूल इट विल फॉल. हाउएवर कैन देयर बी लोकल वेरिएशंस? कैन देयर बी लोकल वेरिएशंस? बिकॉज एक तो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, बट रिमेंबर सन इटसेल्फ शिफ्ट्स नॉर्थ. आजकल जून में सन इधर आ गया ना, तो सन की हीट भी तो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी. यस और नो? रिमेंबर दिस, जनरल ज्योग्राफी में आपको बताया द हीट शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट्स. यस, ये क्या कहलाएगा? ITCZ. तो क्या हम कह सकते हैं कि रेनफॉल जो है, जो इक्वेटर पर होनी चाहिए बिकॉज ऑफ मॉनसून, ऑफ वो इंडिया में आ जाएगी? डू यू अंडरस्टैंड? अ लॉट ऑफ रेन मस्ट हैपन एट इक्वेटर. इक्वेटर मस्ट गेट मोर रेन, बट इंडिया विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ रेन. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो इक्वेटर के बराबर रेन ले लेंगी. दे विल बी गेटिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर्स. कैसे पॉसिबल है सर ये? तो क्यों? क्योंकि हीट बेल्ट शिफ्ट भी होती हैं. एवरीवन, कैन यू कनेक्ट देम? अब एक टीचर आपको सब पढ़ा चुका है एंड नाउ द टीचर इज सेइंग बेटा एडिशन इज डन, नाउ लेट अस लर्न मल्टीप्लीकेशन. तो एडिशन तो आप घर से करके आ जाइए, मल्टीप्लीकेशन हम शुरू करते हैं. हमने प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया? जवाब दो हमारा सारा. यार बदतमीजी मत करो यार, अच्छा नहीं लगता. वो क्या लिख रहे हो वो चीज? आपने लिख तो दी भाई, सोचिए तो सही. तो ये जितने भी आप लिखते रहेंगे, अब हमने कहा कि क्लास को ब्लॉक नहीं करेंगे, यहां पे लिख दिया करेंगे जो ऐसे वाले कमेंट आएंगे. इज एवरीवन ओके? तो ये वाली समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक चीज यहीं पर एक मैजिक कर देते हैं. आर यू इंटरेस्टेड इन मैजिक? ये रहा, देखो. ये ट्रू. यहां पर क्या होता है? लॉट ऑफ रेन इन ब्राजील. विच फॉरेस्ट? सेल्वास. लॉट ऑफ रेन मीन्स लॉट ऑफ ट्रीज. यस और नो? एज वी गो अवे फ्रॉम दिस, क्या मैंने आपको बताया ग्रासलैंड हो जाता है? लानोस एंड काम्पोस और कटिंगा और सिराडो. कनेक्ट हो गया? कनेक्ट हो गया? तो माई जॉब इज टू एक्साइट माई स्टूडेंट कि भाई यार मैं भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स की तरह से मैं गेस कर सकता हूं यार, व्हाई नॉट? अब समझ में आया वहां पे लानोस काम्पोस क्यों है, ग्रासलैंड क्यों आ जाता है, सवाना क्यों आ जाता है, वहां पर क्यों फॉरेस्ट नहीं होता? बिकॉज फॉरेस्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रेन. ट्री को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेन चाहिए. ट्री वांट्स दैट. अगर ट्री को उतनी रेन नहीं मिलेगी तो भाई वो सूख जाएगा. सूखने की जगह कौन रिप्लेस करेगा? घास आ जाएगी. दैट्स अ सिंपल रूल. दैट्स अ सिंपल रूल. अब आप चाहेंगे कि सर इसके नोट्स, भाई देखिए दिस वीडियो विच आई एम डूइंग, आप इसको प्ले कर सकते हैं 2x पे प्ले करिए अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो. इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट कमिंग, यू प्ले एट 2x वंस अगेन. आई एम सेइंग वंस द कॉन्सेप्ट इज देयर, ये बनाना सीख गए तो आप कहीं पर भी बता सकते हैं. यस और नो? तो एवरीवन व्हेन समबडी सेड all 5 are humid, all 5 are humid, तो भाई ये तो ह्यूमिड लगता है मुझे, नंबर 5 तो ह्यूमिड लगता है. एवरीवन, डू यू अग्री? नंबर 5 इज ह्यूमिड.
यस, बट उसके बाहर की लोकेशन वैंकूवर कैसे ह्यूमिड होगा, कैलिफोर्निया। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया, हैव वी टॉक्ड इन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस दैट 30 डिग्रीज ऑन द वेस्टर्न साइड इज अ डेजर्ट। If 30 degrees on western side is a desert, how can California be humid? Remember, somebody wrote all 5 humid. अब your teacher is questioning you. Your teacher is questioning you and he says, hey, ये क्या कर दिया, पांचों कैसे लिख दिया यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने पढ़ा है। आप इसको क्यों बोल रहे? इसका कॉन्फिडेंस आपने तोड़ दिया, आपने स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, इसने गलत बोला, आप हम प्लेटफॉर्म पे ही क्यों आए? अरे सुनिए यार, दिस इज द विजडम। निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करके आपकी गलती को बता सके। यार इतना तो आजादी दो, शिक्षक को तो दे दो भाई, शिक्षक तो आपका वो गलती बता सकता है, बट नहीं, हम नहीं बता सकते यार। तो भाई ये तो गलत हो गया बच्चे, कैलिफोर्निया तो ऑल 5 नहीं हो सकता। ऐसा ही सोच के देखिए, यही तो डेजर्ट होता है, अटकामा डेजर्ट। हैव आई टोल्ड यू अबाउट अटकामा डेजर्ट? अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को याद है मैंने कॉपर के लिए बताया, यहां पे कॉपर मिलता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? एरिका एक्विक, ये मैं करवा चुका हूं। हैव आई डन दिस? करवाने के बाद इफ द टीचर फील्स दैट द स्टूडेंट्स आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स, कैन ही सेज यार ये क्या कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, कह सकता है शिक्षक। अगर शिक्षक का ये भी हक नहीं, उसका गिरेबान पकड़ लोगे तो यार फिर तो शिक्षा के लिए हुई नहीं, फिर तो दुकान चल रही है भाई, इतना दिया इतना दे। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं यार, आज आई रियली होप कि अच्छा रिजल्ट आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हुआ है, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट टुडे। बहुत से लोगों की मेहनत आज सफल होने वाली, सार्थक होने वाली, बहुत से लोगों की अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि स्विगी पे ऑर्डर दिया और मेरा जो है डिलीवरी करवाओ। थिंक अबाउट इट। कॉपर लिखा है, देखिए लक्ष्मी ने लिखा है, फॉस्फेट मैंने आपको बताया था। एंड आई रिमेंबर इवन टॉकिंग अबाउट अभिषेक सर का, मैंने आपको बताया कि सर ने शायद बताया होगा आप लोगों को यहाँ पर कुछ गुआनो वाला, किसी बच्चे ने गुआनो की बात की थी, गुआनो बर्ड की, तो हम लोगों ने ये बात की है भाई। तो मेरा भाई मैंने ही पढ़ाया, सो कैन आई नॉट एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू बी यू नो लाइक दैट मच अप्लाइड? कैन आई से कि भाई पढ़ के आओ यार, ये चीज हमने अभी की। तो आई डोंट थिंक सो एरिका एंड इक्विक आर ह्यूमिड। तो सब लोगों को समझ में आ गया कि अगर मुझे यहां पर टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी देखनी है, कैन आई राइट ह्यूमिड ओवर हियर? लिख सकता हूं कॉन्फिडेंटली एवरीवन, कैन आई राइट ह्यूमिड ओवर हियर? Can I say as I am going away from the equator, humidity will reduce? Humidity will reduce. Everyone, are you getting the formula? Simple. I want to make it a science so that आपके लिए atmosphere को memorize नहीं करना पड़ेगा. You can very well guess. And as Nirankush rightly said, sir, will the plateaus not impact? Well, plateaus will impact. तो plateaus का जो input है वो उसके बाद आ जाएगा. पहले latitude देख लें. Latitudinal impact on the temperature. ठीक है, एक रेनफॉल हो गया। दूसरा रेनफॉल क्या है बच्चों? सेकेंड रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक। आई होप यू आर नोटिंग दिस डाउन। ओरोग्राफिक रेनफॉल, दिस हैपन्स व्हेन मॉइस्चर लेडन, मॉइस्चर से भरे हुए विंड्स, मॉइस्चर लेडन विंड्स are forced to rise by a physical obstruction। और वो क्या होती है? ओरो। ओरो मीन्स माउंटेन। इतनी सी बात है और इसमें कुछ नो साइंस इन दिस, एब्सोल्युटली नो साइंस इन। यस, एब्सोल्युटली नो साइंस। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए क्या चाहिए? इसके लिए ए चाहिए हमें। फर्स्ट इज वी नीड मॉइस्चर लेडन विंड। एक तो विंड होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर होना चाहिए। आप यूं समझिए, दिस इज लाइक शुगर केन जूस। शुगर केन में जूस होना चाहिए, बिकॉज इसी का हम मॉइस्चर निकालेंगे। मॉइस्चर लेडन विंड मीन्स नमी से भरी हुई, नमी से तृप्त वायु। ठीक है, संतृप्त वायु ले लीजिए, मॉइस्चर लेडन विंड। सेकेंड इज, ये आपके पास आनी भी चाहिए। इट शुड कम टूवर्ड्स यू, नॉट गो अवे फ्रॉम यू। ऑन शोर हो, ऑन शोर होनी चाहिए, ऑन शोर डायरेक्शन।
आपके पास आएगी तभी तो लेकर आएगी, आपसे दूर जा रही तो क्या मतलब? ट्रू और नॉट? तो somebody is distributing sweets, मिठाई बांट रहा है, लड्डू बांट रहा है, मेरे पास आ रहा है तो मैं मुस्कुराऊंगा कि भाई लेकर आएगा, मैं मुस्कुराकर अपना लड्डू उनसे मांग लूंगा. बट इफ दैट पर्सन इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, लड्डू डजंट एग्जिस्ट, मैं इशारा करूंगा, नाचूंगा, भाई मैं भी हूं, इधर देखो. तो इट शुड बी ऑन शोर, मीन्स आपके पास आ रही है, टुवर्ड्स द शोर, यू आर ऑन द कोस्ट. एंड सी व्हाट डू वी नीड? अ बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन. 3 चीजें चाहिए. ठीक है, लेट अस लुक एट अ लैंड. दिस इज द कॉन्टिनेंट. On either side there is what? On either side there. This is the west coast. This is the east coast. Okay, west coast. Quickly tell me, ये माउंटेन है, तो माउंटेन का ईस्ट इधर है, वेस्ट उधर है. If the wind is blowing like this, wind, which side of the mountain will get rainfall? Which side of the mountain will get the rainfall? Which side of the mountain will get rainfall? Eastern side. Very good, perfectly okay. Eastern side. Why? Because इधर की wind is on shore, और ये wind ऐसे क्रॉस करेगी और इधर जाएगी, तो इधर क्या है? ऑफ शोर. इज एवरीवन ओके? तो क्लाउड कहां बनेगा? ऐसे आएगा विंड, इट विल बी फोर्स टू राइज, इट विल फॉर्म क्लाउड्स, तो ये रेन हो जाएगी. इज एवरीवन ओके? तो विंड, द डायरेक्शन विल डिसाइड. तो हमें हमेशा क्या चाहिए? वी नीड अ बैरियर, वी नीड द विंड. यस और नो? वी नीड अ बैरियर, वी नीड द विंड, एंड वी ऑल्सो नीड moisture. Is everyone okay? Are you with me? How many of you remember, and if you haven't drawn this, draw कर लीजिए, that from 0 to 30 and 30 to 60 the planet experiences some winds which are called permanent winds. ये विंड कहलाती हैं ट्रेड विंड, और ये कहलाती हैं वेस्टर्लीज. यस, इज एवरीवन ओके? डू यू रिमेंबर दैट? नहीं है तो लिख लीजिए. ये ट्रेड विंड्स होती हैं, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर. व्हाट आर दीज? वेस्टर्लीज. They also flow throughout the year. And यहां पर कौन सी आती हैं? Polar easterlies. How many of you remember this? कितने लोगों को याद है? Trade winds, polar easterlies. How many of you remember this? Do we remember? एक ये कमेंट आया हुआ है, सर तो इंडिया में अरावली है तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां बारिश होगी, है ना? ज्योति लिख रही, रानी पूजा, आपस में लड़ाई मत करो. और यहाँ पे ज्योति बोल दिया, सर इन बच्चों का हौसला टूट जाएगा, ये कुछ भी कर सकते हैं. बढ़िया यार. एवरीवन, ये जो क्वेश्चन है अरावली में इंडिया में बारिश होगी या नहीं होगी, अरावली क्या है? अरावली इज व्हाट? अरावली इज व्हाट? इट्स अ माउंटेन रेंज. अरावली इज अ माउंटेन रेंज. ओरोग्राफिक बारिश के लिए क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए, ओनली वन और 3 थिंग्स नीड. 3 थिंग्स नीडेड ना? जब लिख के दे दिया 3 थिंग्स नीडेड, यस, लिख के दे दिया 3 थिंग्स नीडेड,
तो एक भी कम होगी तो बारिश नहीं होगी ना, ट्रू और नॉट? यू शुड बी अ ग्रेजुएट, यू शुड हैव एन एज लिमिट, दो क्राइटेरिया ना यूपीएससी के लिए टू अपीयर फॉर द एग्जाम, यू शुड बी अ ग्रेजुएट ऑल्सो एंड विद इन द एज लिमिट। एक क्राइटेरिया मीट होने से तो नहीं कर सकते ना, दोनों मीट होने चाहिए ना। यस, तो तीनों है। तो अरावली होने भर से बारिश नहीं होगी भाई, अरावली होने भर से बारिश नहीं होगी। व्हाट डू वी नीड? वी नीड द विंड्स एंड वी नीड्स द विंड्स टू बी ब्लॉक्ड बाय इट। तो व्हाट हैपेंस इज जनरली मानसून विंड्स जो आती हैं, मानसून विंड्स जो आती हैं, दे फ्लो पैरेलल टू अरावली। अरावली तो है उनके रास्ते में, बट इट इज नॉट कमिंग परपेंडिकुलर टू इट, इट इज गोइंग पैरेलल टू इट, पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल में तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। तो द सदर्न पार्ट ऑफ अरावलीज, द सदर्न पार्ट ऑफ अरावलीज जहां पे माउंट आबू है उधर तो बारिश होती है, बाकी नहीं होती है। इज एवरीवन ओके? ठीक है, तो इसलिए बताया तीन तीन क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। एवरीवन, विंड्स आर क्लियर? तो ओरोग्राफिक के लिए जो माय फ्रेंड हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो द नेम, व्हाट माय फ्रेंड वाज थिंकिंग दैट वेयरएवर देयर इज अ माउंटेन देयर शुड बी रेन। नो नो नो, दैट इज नॉट व्हाट आई हैव सेड। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है कि माउंटेन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, माउंटेन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। उसके बाद हवा भी तो हो, हवा भी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। माउंटेन शुड बी इफेक्टिवली ब्लॉकिंग इट। डू वी गेट दैट? दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल। इज एवरीवन ओके? ठीक है। निरंकुश कह रहा है कन्वेक्शनल रेनफॉल ओशन के पास भी तो हो सकती है, सिर्फ लैंड पर वाटर बॉडी में ही होती है। तो एवरीवन, डिड आई से दैट? एनीवेयर डिड आई से? एनीवेयर डिड आई से दैट it happens in on land? Did I say this? Nirankush, why are you saying this? I तो simply said that the surface is warm, evaporation होना। Did I say this? नहीं कहा ना मैंने, तो गलत इंटरप्रिटेशन। I simply said that in these latitudes जहां पर भी पानी होगा इवेपोरेट हो जाएगा, शाम को बारिश हो जाएगी। मैंने ये लैंड में दिखाया क्योंकि मुझे लैंड में ही तो वेजिटेशन दिखाना है भाई, मुझे क्लाइमेट तो वही दिखाना है। ठीक है, एवरीवन विद मी ऑन? भाई मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब के बाद ये जो आप जो लिखते हैं ना कमेंट जो हमारे पास आता है और फिर दो चार उसमें मजा भी लेते हैं, सोच के देखिएगा, मजा लेने से कोई फायदा नहीं। इट इज अबाउट विन विन। आप पढ़ के आइए, वी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। गेट दैट? एवरीवन ओके? चलिए, तो यहां पर है हम, आर वी हियर? व्हाट एम आई टॉकिंग? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक के लिए क्या चाहिए बच्चों? ओरोग्राफिक, व्हाट डू वी नीड फॉर ओरोग्राफिक? इज द ऑडियो फाइन? वी नीड अ बैरियर एंड वी नीड विंड्स। दोनों दिख रहे हैं मुझे। एंड व्हाई डिड आई ड्रॉ दिस? बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव joined us directly from world geography, so they missed this, तो उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। so that is for your benefit, don't think that मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कुछ लोग ये भी लिख देंगे फालतू बोल रहा है, मतलब आप ही लोगों ने यहां पर लिखा है और उसके बाद यू नो लाइक इफ द टीचर इन हिज डिग्निटी भैया उनको क्वेश्चन करे तो उसके बाद आप कहते प्लेटफॉर्म पे हम आए क्यों हैं? मुझे नहीं पता क्यों आए हो, ये करने आए थे तो हमने तो इसलिए बुलाया नहीं था। वी डिड नॉट कॉल यू फॉर दैट। ठीक है, we are here। अब let's play an interesting thing, everyone pay attention। मैं कुछ यहां बना देता हूं। Do you see this? Can you tell me what is this, everyone? What is this? सर ये तो रॉकीज है। परफेक्ट। What is this wind telling us? सर ये तो वेस्टर्लीज है। Are they flowing from the ocean? Are they on shore? Yes or no? Are they on shore? Are they moisture laden? Is there a barrier? तो अब मुझे बताइए वैंकूवर आइलैंड यहीं पर आता है कि नहीं आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो वैंकूवर आइलैंड? कैन एनीवन टेल मी वैंकूवर आइलैंड ह्यूमिडिटी में कैसा होगा? हाउ मेनी ऑफ यू? लॉजिक बिल्कुल मैथ्स की तरह बता रहा हूं मैं, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली लाइक मैथ्स, यू विल गेट द आंसर। टेल मी वैंकूवर कैसा होगा? वैंकूवर में क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ। वैंकूवर, हाउ वुड वैंकूवर बी?
ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जल्दी से बताइए। Everyone, humid and cool, cool and humid, cool and humid, cool and humid. Yes or no? Cool and humid. So Vancouver is cool and humid. अब बताइए, ये किसी ने जो लिखा, all 5 are humid, all 5 are humid, ये humid हो जाएगा, correct. Number 5 is humid, correct. Number 3 is not humid, it is arid. Number this is also arid, yes or no? और न्यूफाउंडलैंड क्या है? न्यूफाउंडलैंड की भी बात करेंगे अभी. डू वी गेट दैट? अब एक क्वेश्चन आया, सर प्लीज कंप्लीट जनरल ज्योग्राफी फर्स्ट. अभी क्लास में लिख रहे हैं तो बहुत टाइम नहीं लेंगे इसके लिए. हैव आई गिवन 30 लेक्चर्स ऑन जनरल ज्योग्राफी? मैं करवा चुका हूँ. दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु मिस्ड इट, उनकी मदद के लिए कर रहा हूँ. बट आप ये डालेंगे तो कोई रोक नहीं सकता. एवरीवन ओके? अच्छा एक बात बताइए, पे अटेंशन टू दिस एरिया. What kind of wind is there in this area? The black area. Onshore or offshore? Onshore or offshore? Is it going away or not? Offshore means moisture is not coming. Here it is onshore. Remember, onshore में it is coming. तो इधर तो पानी देगा, इधर नहीं देगा. Yes or no? One reason why California is a desert. One reason why California is a desert, but this is not. कई लोगों ने वैंकूवर में सोची है, वैंकूवर में बहुत से लोगों ने, 2-3 लोगों ने लिख के भेजा कि वैंकूवर विल बी सेमी एरिड एंड वैंकूवर विल बी एरिड. एवरीवन, डू यू गेट दैट? वैंकूवर बिल्कुल एरिड नहीं होगा बिकॉज द विंड इज गोइंग देयर. और कैलिफोर्निया क्यों होगा? बिकॉज द विंड इज कमिंग अवे. डू वी गेट दैट? ये 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज से वो आता है. वन फैक्टर. अनदर फैक्टर जो आप लोगों ने मेरे साथ जनरल ज्योग्राफी में क्लास किया होगा, वी ऑल्सो सेड कि देयर इज अ कोल्ड करंट ओवर हियर. यहां पे ठंडा पानी है. कोल्ड करंट, कौन सा करंट है जल्दी बताओ? हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर जनरल ज्योग्राफी क्लास वाले? कोल्ड करंट कितने लोगों को याद है? विच कोल्ड करंट इज देयर? विच कोल्ड करंट इज देयर? कैलिफोर्निया करंट. तो यहां पे डेजर्ट हो गया इसलिए. दिस इज अ डेजर्ट ओवर हियर. और इधर कौन सा करंट है? सर ये तो वार्म गल्फ स्ट्रीम है. नाउ टेल मी, इफ द वार्म वाटर इज देयर, वार्म वाटर इज देयर, विल दैट वाटर कॉज मोर मॉइस्चर एंड विल द रेन कम हियर? यस और नो? यहां पर कौन सा आइलैंड है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड. तो बट न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे तो विंड इज ऑफ शोर. यस, विंड इज ऑफ शोर, बट बिकॉज ऑफ द वार्म वाटर इवेपोरेशन इज देयर. वहीं पर वो पानी भी कर देगा. करेगा या नहीं करेगा? Is everyone okay? So can there be only one factor? I said there can be multiple factors. That is why I said there are 2 types of winds, 2 types of rainfall. Acha, everyone tell me, this diagram which we have seen, equatorial, tropical and subtropical, do they get only convectional rainfall? Yes or no? These areas get only convectional rainfall. Is my statement correct or wrong? Is my statement correct or wrong? Equatorial areas get only convectional rainfall. Is my statement correct or wrong? Sir, your statement is absolutely wrong. The convectional is one type of it. If there is a mountain in this, can also have orographic? Yes or no? Yes or no? Everyone tell me, if convectional rainfall makes a place humid and that has got orographic also, what will it do to the humidity?
और बढ़ा देगा, इट विल मेक वेरी ह्यूमिड, बहुत ज्यादा कर देगा, तो दे कैन ऐड ऑल्सो. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज एवरीवन ओके? तो ये दोनों आ सकते हैं. तो यहां पर भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पर कौन सी आ रही है, दिस बेल्ट में कौन सी आ रही है, इन दिस बेल्ट विच रेन कैन कम, रेन विल बी कन्वेक्शनल प्लस ओरोग्राफ. In this belt which rain will come, in this belt orographic will come, but convectional will not be very much, convectional will be less because heat has reduced. साथ में एक थर्ड रेन आती है which is called frontal rain. frontal rain क्या होती है, जो हमारे यहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आती. this is with the cyclones, this is in India western disturbance. बट ये कौन से लैटिट्यूड में होता है, 30 to 60 में होता है, एंड इंडिया डज नॉट लाई इन दैट. इज एवरीवन ओके? तो एक बात बताइए बच्चों, वैंकूवर में, इज वैंकूवर सॉरी न्यू फाउंडलैंड, एवरीवन आई हैव अ क्वेश्चन, फॉरगेट एवरीथिंग. न्यू फाउंडलैंड, इज इट गेटिंग कन्वेक्शनल रेनफॉल, yes or no? न्यू फाउंडलैंड, is it getting convectional rainfall, yes or no? Newfoundland, is it getting convectional rainfall, yes or no? Newfoundland, no. Why? Because it is very much away from the heat sources. Gone, one rainfall gone. Is it getting orographic rainfall? Is it getting orographic rainfall? नहीं सर, ये तो विंड यहां से आ रही, ओरोग्राफिक भी नहीं आ रही, ओरोग्राफिक भी नहीं. फिर कौन सी होगी, फ्रंटल रेनफॉल. एंड फ्रंटल रेनफॉल रिलाइज ऑन व्हाट, मॉइस्चर. इज देयर मॉइस्चर और नॉट? तो फ्रंटल रेनफॉल with the support of warm Gulf Stream water gives water to this, makes it humid. Is everyone okay? So some of you can question me, Sachin sir, this side is H for humid, okay, how is this side H for humid, this is offshore. You are absolutely correct, but you are thinking only on one aspect of the wind only. You are not thinking of other possibility. दूसरी possibility क्या होती है, कौन सी रेन हो सकती है, फ्रंटल हो सकती है, and if there is moisture that will happen. Is everyone okay? Is everyone okay? Sir, I am from geography optional. Can you please tell about sudden stratospheric warming? वैसे तो वार्निंग लिख रहा है, बट वो तो यार आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हैं, तो मैं ये सब छोड़कर वो कर दूं, अगर नहीं करता हूं तो हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए. मैं चूज करता हूं नहीं करूं. इज इट ओके? के लिए माफी दे दो हमको, और क्या कहें. एवरीवन ओके? तो मजे मजे में डायग्राम से डिड वी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज रेन? यस और नो? सर व्हाई वी नॉट अप्लाई द सेम मेथड इन कैलिफोर्निया? अब बताइए कैलिफोर्निया में कौन सा मेथड है, फ्रंटल लिखी हुई है कहीं पर, यहां पर ये धाकड़ साहब अक्सर ये सवाल पूछते हैं. धाकड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, राहुल धाकड़ जी, आपके क्वेश्चंस, आप अब नाम ले लिया सर, ये प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हम. राहुल धाकड़ जी आपके लिए एडवाइस है, अपनी जनरल ज्योग्राफी, आप भी उस टाइम के जनरल ज्योग्राफी क्लास से कर रहे हैं बच्चे, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है. राहुल धाकड़ जी, पहली चीज तो यहाँ पे फ्रंटल है ही नहीं, बोला कि सर वो लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई करेगा, ना तो वहां पे गल्फ स्ट्रीम है. बताइए गल्फ स्ट्रीम है क्या, गर्म पानी है, गर्म पानी में भाप ज्यादा निकलती है धाकड़ साहब या ठंडे पानी में? अब धाकड़ साहब बोल दिया तो लड़ेगा, ये अरे बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया. अरे भाई धाकड़ साहब थोड़ा तो धाकड़ रखोगे, नाम है धाकड़ यार, थोड़ा तो धाकड़ रहो कि भाई आपने सवाल पूछा तो आपका जवाब दे रहे मैन टू मैन यार, मैन टू मैन, कि भाई ठंडा पानी है, ठंडे पानी में ज्यादा मॉइस्चर ही नहीं होता, तो ये तो हवा को मॉइस्चर नहीं देगा, नंबर वन. दूसरा क्या है, ऑफ शोर है. तो आप कैसे कह रहे हो ये सेम है, राहुल जी कैसे कह रहे हो, आप कह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो. एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग. अब दिक्कत ये है कि टीचर अगर पूरे इंटरेस्ट से अपने स्टूडेंट्स के कमेंट भी पढ़ रहा है, क्लास में जवाब भी दे रहा है, और वो देखता है कि एक ही कैटेगरी के एरर्स वो स्टूडेंट कर रहा है, अगर स्टूडेंट टीचर अपनी हिम्मत करके बोल दे कि बेटा ये सही नहीं है, पहली बात तो टीचर को बोलना कि आसान है ना, क्यों इतना लोड लेना, अबे सब पास होता है पास हो, फेल होता है फेल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है अपनी क्लास करके चले जाना. ऐसा नहीं है ना भाई, आई एम रियली कंसर्न. ये राहुल ऐसे ही सवाल पूछता है, तो मैंने कहा राहुल थोड़ा लॉजिक लगा लो. अब इतना आउट ऑफ कंसर्न अगर बोल दिया तो आज की डेट में ये है कि हम प्लेटफॉर्म पे क्यों आए. भाई मैं तो आपका आंसर दे रहा हूं कि ये दोनों सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है, और आपको एडवाइस भी दे रहा हूं. आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज अपना वो जरूर करिए, जनरल ज्योग्राफी की क्लासेस आपने की है वो दोबारा कर लीजिए, ठीक है.
तो मेरी टीम मुझे बता भी देती है, और जो जेन्युइन है यार, जेन्युइन क्लास हो रही है, एंड आई रियली डू नॉट बिलीव इन मोनोलॉग्स। मुझे याद है मेरे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर थे, उन्होंने मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया यूपीएससी के लिए। वो क्लास में आते थे और ऐसे ऐसे खड़े हो जाते थे और बोलना शुरू। आई यूज टू वंडर इनका बटन कहाँ है। उनका बटन इतने बजे दब जाता था 11 बजे, और वो जो है 1 बजे बटन बंद, और फिर वो टर्न करके कंप्यूटर चले जाते थे। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि पढ़ाई में ऐसा कैसे होगा कि आप बात नहीं करेंगे, और अगर आप बात करेंगे और राहुल बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि राहुल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगा नहीं पा रहे। अब राहुल को उतना बोल दिया तो भाई साहब कोई बोलेगा कि आपने कैसे बोल दिया। अरे भाई, राहुल के थ्रू बहुत से लोगों ने सीखा, बहुत से लोग वो एरर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आई एम तो जस्ट बीइंग दैट यार। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद प्रोफेशनल टीचिंग, मुझे समझ में नहीं आया। इफ अ टीचर इज टीचिंग and through the comments he gets to know that what he has taught उसमें students का interpretation अभी गलत हुआ है, and the teacher points that out and brings to the notice of everyone and says कि यार इसे correct कर लेते हैं, what's wrong with that? I don't know, मतलब I was blessed with good teachers जिन्होंने मेरे साथ ये बातचीत की and they really refined me. आप शायद वही डिक्टेशन वाले बटन वाले टीचर को वेट कर रहे हैं, है ना? तो राहुल आपको आई थिंक समझ आया होगा कि ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। वहां पर गर्म पानी है, यहाँ पर ठंडा पानी है, नंबर 1। यहाँ पर ऑफ शोर विंड्स हैं, वहां भी ऑफ शोर तो है, ऑफ शोर, बट वहां पे फ्रंटल है। फ्रंटल रेनफॉल, आई वांट टू टेल यू, फ्रंटल रेनफॉल का एड्रेस होता है। फ्रंटल रेनफॉल, राहुल एंड ऑल अदर्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ये मिड लैटिट्यूड में ही होती है, इधर और उधर नॉर्मली नहीं होगी, अब नॉर्मल केसेस में होगी। 32 इज एवरीवन ओके? तो यहां पर कौन सी रेन होती है? कन्वेक्शनल प्लस ओरोग्राफिक। इन दिस व्हाट इज इट? ओरोग्राफिक प्लस फ्रंटल, एंड हियर मोस्टली ओनली ओरोग्राफिक, बिकॉज कन्वेक्शनल तो ज्यादा होगी नहीं। कन्वेक्शनल विल नॉट बी टू मच बिकॉज इट्स नॉट वेरी हॉट, एंड fronts are also not reaching there. Is everyone okay with this? ठीक है, everyone, are we clear with what we are doing? Are you getting some confidence यार? अब हम किसी भी कॉन्टिनेंट का we can definitely understand the climate also. ये मेरा इंटेंशन है, एंड आई वॉन्ट टू गिव अ डेमो ऑफ दैट। ये तो समझ में आ गया कितनी रेन हो गई हमारे पास? 3 रेन हो गई। Just to summarize everyone, rainfall gives us a hint of humidity. ठीक है, rainfall 3 types है। Number 1, convectional rainfall. Where does it happen? It happens in hot and humid latitude. अब ये लैंड पर भी होगा निरंकुश, और ये वाटर पर भी होगा, ओशन में भी होगा। ठीक है, जनरली इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, लैंड एज वेल एज वाटर। सेकंड हमने क्या कहा? ओरोग्राफिक। वेयर कैन इट हैपन? एनी प्लेस ऑन लैंड। आई होप इसमें ओशन नहीं होगा। एनी प्लेस ऑन लैंड विद फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं? ए, मॉइस्चर लेडन विंड्स, बी, ऑन शोर, एंड सी इज व्हाट इज सी? बैरियर भी होना चाहिए। एंड थर्ड इज फ्रंटल रेन। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ contrasting air mass interaction. जब दो अलग अलग एयर मास, warm and cold, when they meet, warm air is lifted up. That is how it happens. Contrasting air mass interaction, generally a mid latitude phenomena. Mid, M-I-D, mid latitude, 32 degree. Everyone, please see the difference between a class for SSC and a class for UPSC. In UPSC, you are supposed to write answers also. तो आपके पास तीनों पैरामीटर्स भी आने चाहिए. You should be able to have concepts on multiple parameters.
Whereas SSC में जो क्वेश्चन होगा या वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो उसमें हमारे लिए एक अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन है. फॉर दिस वी नीड टू हैव दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. निरंकुश बेटा जनरल ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड कर लो, दैट विल हेल्प यू. मैं और क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन पे और कुछ बोलना नहीं चाहता. ठीक है. फिर बोलते हैं तो स्टूडेंट्स जो कमेंट्स लिखते हैं, दैट इज हम लोगों के लिए भी ये हो जाता है कि आर वी शुड वी कंटिन्यू. ठीक है. तीनों चीज लिख भी लिया. अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने इसको पैराग्राफ की तरह नहीं दिया, बट ये इतना भर हमने कर लिया. इसके बाद एक और चीज अगर मैं ऐड करूं, इफ आई मे ऐड दिस 0 to 30, what will I get? 1 plus 2, mostly 1 कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफ. 30 to 60 में मुझे क्या मिलता है जनरली? 2 plus 3. And in bracket can I write 1 also? Sir, how 1s are impossible? You said 1 नहीं हो सकता. अरे बेटा, global warming is happening. No, everyone is global warming happening. If global warming is happening, can those mid latitudes also get heated up? अगर heat हो गया तो rule है. Geography is science. That's what the beauty of geography is. If you understand geography as a science, 1 possible है कि नहीं possible है. ठीक है. और जनरली फ्रंटल कहां पर होता है? फ्रंटल तो मैंने आपको बोला मिड लैटिट्यूड में ही होता है. ठीक है. और ऊपर क्या चला गया? ऊपर वी हैव ओरोग्राफिक रहेगा. और अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा हीट हुई तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल. So when people ask me, sir, how to bring current affairs in my understanding, suddenly after giving you the basic science, everyone, do you see ये जो ब्रैकेट में 1 डाला है, this is because of current affairs. Global warming is happening. साइबेरिया में वर्खोयांस्क में हीट वेव आ गई. इमेजिन, कोल्ड एरिया में हीट वेव आ गई. अगर हीट वेव आई है 2022 में, if it was a heat wave over there, will it cause evaporation there? Yes or no? Aral Sea, imagine Aral Sea is in the Central Asian part. वो भी तो ड्राई हो गया, evaporate हो गया कि नहीं हो गया? So that's also there. So that is why I am saying that is happening. So वहां भी हो सकता है. So my student should not be rigid, because science does not make you rigid. Science gives you the flexibility. अच्छा, रूल तो ये था, फिर चेंज कैसे हुआ? Yes or no? True? Is everyone okay? I hope I have given you this world, and now we are going to see this on a continent. I will demonstrate this. Everyone okay? ठीक है? Everyone clear? तो ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शनल के लिए प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करूं? ऑप्शनल की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करूं? अगर नहीं करूंगा तो बोलेगा टीचर खराब है. मैं बस ये लिख दिया. अगर आपको जायज लगता हो क्लास रोक के करना तो आप कहेंगे तो मैं ये भी कर दूं. वन मोर थिंग talk about. Sir, you told us frontal is only in temperate zone, then why is cyclonic rainfall in tropical belt? तो मानस, आपने भी तो जनरल ज्योग्राफी की है मेरे साथ. ये मानस का क्वेश्चन है. इनका ये कहना है कि ये जो फ्रंटल है, फ्रंटल साइक्लोन होता है. ये तो आपने मिड लैटिट्यूड में बताया 30 to 60 degrees, but India is also getting cyclonic rain. How is that possible? India gets cyclonic rainfall. तो कौन बताएगा मानस के क्वेश्चन में एरर कहां हो रहा है? मानस के क्वेश्चन का एरर बताएगा कोई? Sir, you told us that frontal is only in temperate, then why cyclonic rainfall in tropical belt? इंडिया हटा देते, इंडिया नहीं पूछा इन्होंने, ट्रॉपिकल बेल्ट में क्यों हो रहा है? कौन बताएगा? जिसने भी जनरल ज्योग्राफी क्लास की है, बहुत ही सिंपल आंसर है, सब बता देंगे अभी. एकदम से आंसर सही आ गया. सर, वो 2 अलग साइक्लोन है, ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सर. ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रंटल साइक्लोन. बेटा,
एंड मानस, बिकॉज आई नो दैट, ये कह रहा है, कोई कह रहा है बेल्ट इज नॉट स्ट्रेट। नहीं बेटा प्रियांशु, बेल्ट वाली बात ही नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो रेन होती है, और ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन से चलता है, ये कन्वेक्शन एंड लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन, इफ पीपल रिमेंबर, लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन से चलता है ये। और फ्रंटल साइक्लोन जो है मिड लैटिट्यूड में जो चलते हैं, ये एयर मास कॉन्ट्रास्ट से चलते हैं। तो इन इंडिया अभी जो आपने साइक्लोन मोका देखा है, साइक्लोन मोका इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कन्वेक्शनल लेटेंट हीट। अभी जो है टेम्परेचर, मैंने आपको मोका का वो भी बताया कि बे ऑफ बंगाल इज गेटिंग हीटेड अप, दैट इज वाई, तो मोका है। लेकिन जो इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है ना बच्चों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो टेम्परेट साइक्लोन हो। Do you get that? वैसे when I'm talking about Indian geography, then also I'll talk about, and people who have done general geography with me, मैंने दोनों cyclones में अंतर बताया। And do you realize that how important world geography is? What you read in theory, आज वो practice में apply होती है। And you can see, oh, what silly mistake did I make? That is why we say, world geography, general geography, they are in a way, like I am explaining you something, आपने कहा सर समझ में नहीं आया, will I give you an example? So it's like general geography, you think you've understood it, but when you see it in examples, oh, this is it. And then what happens is, आपके exam में, prelims में your questions will become accurate. Because there are people who will just listen to the notes बना के गए, उसको लेकर गए, कभी apply नहीं किया. So that is why those errors happen. Is everyone okay? तो नीलय फिर पूछ रहा है कि 60 डिग्री के ऊपर ओरोग्राफिक रेन कैसे हो जाएगी। अब नीलय कर सकते हैं क्या आपका, आप बताइए। कुछ करेंगे तो फिर ऐसा बोलते हैं कि टीचर जो है स्टूडेंट को ऐसे बोलता है। एवरीवन, ये जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन यूरोप हैव रेन, मैंने नाम नहीं लिया, नीलय ने पूछा था। नीलय हु हैज डन जनरल ज्योग्राफी विद मी, आज नीलय आप ही के लिए क्लास की है बच्चे। जो किसी स्टूडेंट ने लिखा कि हम आते क्यों है प्लेटफॉर्म पे, आप ही के लिए। तो नीलय ने पूछा है तो सब फ्रोजन होना चाहिए। अब नीलय का ये पूछना है कि पोलर एरिया में ओरोग्राफिक कैसे हो जाए। पोलर एरिया में चले बच्चों, ये पोलर एरिया है, यहां पर क्या है, दिस कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका, गेट दैट, अंटार्कटिका। सभी लोग वर्ल्ड मैप खोलेंगे, वर्ल्ड मैप से जस्ट पहले आपको मिलेगा अंटार्कटिका का मैप। अंटार्कटिका मैप, कैन वी ओपन द अंटार्कटिका मैप। और एक बात बताइए बच्चों, 60 to 90 डिग्रीज कौन सी विंड चल रही है, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली चल रही है ना, पोलर वेस्टर्ली दिखाई दे रही, इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे नो, इज इट फ्लोइंग और नॉट। Everyone look at in the center of, did you find Antarctica everyone? Did you find Antarctica? बच्चों एंटार्क्टिका में आपको मिलेगा ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन, यहां पर भी एक माउंटेन चेन है, क्वीन मॉड रेंज बोलते हैं। एंड एवरीवन, कैन यू लोकेट द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंट एरेबस, 3794, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स। माउंट लिस्टर 4 kilometers, Mount Markham 4.3 kilometers, Mount, I don't know, my side it is showing, my app is showing that it is not, my transmission fine, एक बार फिर से लॉगिन करके देखता हूं। Now fine, चलिए ठीक है, something happened on my side, transmission side. Okay, everyone, we were talking about Antarctica having a mountain range, Queen Maud range, and if there are winds, they will be obstructed, and it is
Everyone, is the audio video fine? Is the audio video fine? Is all good? So I think the audio video is back. Something I do not know, for some reason the internet stopped working. Everyone, if you are able to listen to me, kindly refresh. That is one thing. Second thing is, all questions are welcome. मैं सभी के questions को answer दे रहा हूँ. Only request is, जो लोग मेरे साथ at least, you know, I can understand a student who's just joined me now, who has been with me with 40 classes, 40. इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप अप्लाई करेंगे, तो मैं उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आई थिंक द टीचर शुड बी एबल टू एक्सपेक्ट एंड डिमांड दैट. थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को ज़बरदस्ती देशभक्ति से ना जोड़ें, और कोई भी किसी चीज़ को बीच में आप इधर उधर किसी को बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं है, टीचर और स्टूडेंट की बात है. I am talking to Rahul Dakar because I know he has been in the class. I am talking to Nilay because I know he has been in the class. So I can ask him rightfully. आप लोग इसमें क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आपका कुछ बनता नहीं है. और बीच में जो सब तरह के कुछ सपोर्ट में आते हैं, कुछ अपोज में आते हैं, वी डोंट नीड यू. द आइडिया इज दैट एवरीवन फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, इफ यू कैन गेट दिस, यार ये तो लॉजिक है ना, सर ने एबीसी सिखाया, आज सेंटेंस बना रहे हैं, तो वी शुड बी यूजिंग इट. उनके एरर्स से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो अच्छी बात है. उनके एरर्स से कुछ सीख सकते हैं तो अच्छी बात है. प्लीज स्टॉप योर कमेंट्स विद देम, फॉर देम और अगेंस्ट देम. यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट. आप अपने कमेंट का जिम्मेदारी लीजिए. तो आई डोंट नो व्हाई इंटरनेट में कुछ इश्यूज आए. कैन वी क्विकली गो टू एक टेस्ट कर लें, क्लास भी खत्म करते हैं. और आज की क्लास में हमने क्या किया? आज की क्लास में आई टॉप्ड द क्लास एंड आई वुड थैंक निलय फॉर दैट, कि निलय ने वो एरर वाले क्वेश्चन पूछे. तो एरर वाले क्वेश्चन से आई रियलाइज दैट इफ आई जस्ट टेक द क्लास विदाउट द क्लाइमेट, तो ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो फॉर दैट आई एम क्रेडिटिंग निलय, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट टेलिंग निलय just to keep on asking those questions mechanically. निलय, ये mechanically word मैंने आपके लिए जनरल ज्योग्राफी में भी कई बार यूज किया, कि do not see things mechanically. There is a cause and effect. There is a science to things. Please try and understand that. Yes? चलिए, तो टेस्ट में मैं थोड़ा अफ्रीका भी पूछना चाहता हूँ. एवरीवन, कैन वी टेक अ फ्रेश शीट एंड टर्न इट अराउंड. फ्रेश शीट, टर्न इट अराउंड, एंड बीच में एक लाइन से पार्टीशन दे देंगे. क्लियर? और यहां पर सेंटर में पुट दिस, एंड आई वांट यू टू मेक इधर बनाए एक सी बनाएंगे. रिमेंबर अफ्रीका, विल मेक अ सी, देन दिस, yes. Everyone, do you realize that equator? रोशनी कह रहे हैं, सर यू वर सेइंग समथिंग अबाउट अंटार्कटिका. अच्छा, तो अंटार्कटिका अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. आई विल कम टू दिस, डोंट वरी व्हाट आई सेड. आई जस्ट केप्ट ऑन स्पीकिंग, लेकिन उस टाइम आई थिंक सिग्नल वाज नॉट देयर. आई विल कम टू दैट, डोंट वरी. एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन टू दिस इक्वेटर. And do we know where is Tropic of Cancer? This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. Yes. This is 30 degrees south. This is 30 degrees north. Everyone with me on this? तो क्लाइमेट देखना है, तो क्लाइमेट का पहला रूल क्या होता है? Three words of temperature: warm, cool, cold. Which one for this continent? Warm, cool, cold. Which one for this continent?
विनय यादव, अभी मैं आंसर करता हूं. विच वन फॉर दिस कॉन्टिनेंट? ये देखिए निधि पटेल क्यों टेम्परेट लिख रही है मुझे पता नहीं. निधि बेटा 0 से 30 तो यार ट्रॉपिकल होता है, क्या बात कर रहे हो यार, फिर भी कोई टेम्परेट लिख रहा है. एंड मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये टाइपो एरर है. आई कांट इवन से दैट दिस इज अ टाइपो एरर. ठीक है, ऑटो टाइप हो गया हो, ट्रॉपिकल है ना. Africa is a warm continent, everyone. Africa is a warm continent. And then Africa comes in this transition belt. 30 डिग्री का जो बेल्ट होता है ये ट्रांजिशन बेल्ट होता है, क्योंकि 30 इज द सिंकिंग एयर. ये एक स्पेशल क्लाइमेट होता है. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस क्लाइमेट? मैंने जनरल ज्योग्राफी में कराया. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट फिर से कराऊंगा, डू नॉट वरी. I will be talking about this again in my world geography classes, so don't worry. Do you remember this Mediterranean? चलिए, बहुत अच्छी बात है. That's it. There is no temperate in this. There is no temperate in this. There is no frigid in this. There is no polar in this. If this country was a continent was a flat continent, it would have been uniformly warm. But we know that there are highlands. जैसे निरंकुश ने पूछा था, सर विल प्लेटूज मेक अ डिफरेंस? प्लेटू, माउंटेन, दैट हाईलैंड विल मेक अ डिफरेंस, बट लैटिट्यूडनली दिस इज अ वार्म कॉन्टिनेंट. आर वी डन विद दिस? सेकेंड इज रेनफॉल. व्हाट रेन विल हैपन ऑन दिस? जल्दी से बताओ, रेनफॉल कौन सी होगी यहां पर बच्चों? विच रेन विल हैपन ऑन दिस कॉन्टिनेंट? लेट मी आस्क यू. सो वी आर अप्लाइंग, दिस इज अ टेस्ट. सो आई एम आस्किंग यू, दिस इज अ टेस्ट ऑफ क्लाइमेट हैपनिंग फॉर यू. विच रेनफॉल विल हैपन? विच रेनफॉल टाइप्स विल हैपन? कौन है सबसे पहले जो लिखा है उसी को मिलेगा राइट आंसर. अभय राज चौकसी. 100% करेक्ट आंसर फॉर अभय राज. ही सेज कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक. कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक. वेरी गुड. तो बच्चों, नाउ टेल मी, which rain have I shown on this? Which rain is shown in my map? Which type of rain have I shown you? Which rain have I shown you? कौन सी रेन दिखाई है? Sir, you have shown convectional. Very good. Can you see convectional as we are going away from equator reduces? Yes. Humid, semi-arid, arid, semi-arid, arid. Yes or no? Now see the signs of it. See the signs of it. Don't you think in Africa the humid area have forests, trees? Yes or no? And semi-arid areas have grasses. What are these? Savanna. दोनों तरफ क्या होता है? Savanna. And उसके बाद क्या आ जाता है? Desert. Simple science working that why there is forest around river Congo, Zaire, then the Chad region where we have this region Sudan and all that where there is water shortage, semi arid. और ऊपर जाऊंगा Libya, Sudan, North Sudan जाऊंगा तो वहां desert हो जाएगा, नीचे desert. Do you see a connection everyone? Do you see a connection? But अभी तक कौन सी rain हुई है? Only one rain has happened. One rain is which rain is this? Convectional. What do we need for orographic? Sir, we need onshore winds. Winds कौन सी हैं? Yes or no? I hope you are drawing this. Which wind is this? Southeast trade wind, northeast trade wind. Yes or no? What do we need? Now we need a barrier. Is there any barrier? Now everyone is going to thank me कि सर आपने अच्छा किया ये बनवा दिया था हमारे लिए. Remember barrier? ये barrier है ना? Can I say in the south there is barrier, in the north no barrier? No barrier. South there is barrier.
So everyone, I am going to make it blue right now. Can I expect rain to happen in this blue belt? And this rain will be orographic. नॉर्थ में थोड़ा सा आएगा, ये मैंने बहुत ज्यादा ऊपर बना दिया, एक्चुअली ये इतना आएगा भी नहीं, ये तो इधर आता है. यस और नो? नॉर्थ में जनरली देयर इज नो बैरियर. सर व्हाई नो बैरियर? अरे आप ही ने तो देखा था, नाइल रिवर फ्लोज थ्रू अ डेजर्ट. रिमेंबर लेक विक्टोरिया, लेक टना. When there is no barrier, can orographic rain happen? No, it cannot happen. Everyone, today do you have a scientific reason that deserts are located on the western side of the continent, but in case of Africa, northern hemisphere, they are the west to east, पूरे के पूरे उसमें. The whole belt is desert. Do you get that? So then in south it happens. लगाया बेटा, साउथ में तो लगाया ना, साउथ में लगाया. बट साउथ में कहां पर होगी? ओरोग्राफिक बैरियर कहां पर होता है? जहां पर बैरियर होता है वहीं पे बारिश होती है ना. रेनफॉल हैपन्स ओनली इन दैट एरिया. पूरे में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. इज एवरीवन ओके? यस एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड थ्रू अ टेस्ट वेयर रेन विल हैपन? डिड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन अफ्रीका व्हाई दिस होल बेल्ट इज डेजर्ट? होल बेल्ट इज डेजर्ट. डेजर्ट तो जनरली वेस्टर्न पार्ट में होता है. इधर क्यों आया? क्योंकि यहां से तो कम हो गई, द convectional rainfall reduced, and orographic. And imagine, orographic should have two things, moisture laden also, no? But here तो we have the desert of Saudi Arabia. Saudi Arabia का जो desert है, Arabian desert, that also doesn't give it moisture. Moisture is only a little bit where? In the Red Sea. तो थोड़ा सा है, कितना उठाएगा? No barrier, no barrier, little convection, and the rainfall, the winds also have very little moisture. Three reasons why it is there. Number one, no orographic barrier. Number two, the convectional effect is very less because it is away from equator. And number three is what? The winds are also not having much moisture. Is everyone okay? Everyone with me on this? Everyone with me? Now somebody is saying, रोशन कुमार का एक क्वेश्चन है, एटलस माउंटेन कैन एक्ट एज अ बैरियर. रोशन कुमार का क्वेश्चन, everyone, and I said geography is science, so Roshan Kumar is questioning, and Roshan Kumar has all the right to question कि सर यहां तो बैरियर होगा. रोशन कुमार, बैरियर है, यू आर वेरी करेक्ट. इज द विंड ऑन शोर? रोशन कुमार, डू यू गेट योर आंसर? तीनों चीज होनी चाहिए ना बेटा. बैरियर भी होना चाहिए, देयर शुड बी बैरियर, एंड द विंड शुड बी व्हाट? ऑन शोर. रोशन कुमार, डू यू गेट दैट? वेयर इज द एरर इन द रीजनिंग? एवरीवन ओके? रोशन का भी आंसर हो गया. सी, ज्योग्राफी साइंस, आप 2-3 लॉजिक करेंगे तो हो जाएगा. एटलस इज ऑल्सो पैरेलल. एटलस इज नॉट पैरेलल बेटा, पैरेलल की बात ही नहीं है, वो ऑफशोर है उधर से. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? इट शुड बी बैरियर इफ द रेन इज ऑन शोर. बैरियर तो तभी तो ऊपर उठेगा. कोई बोला नाइल वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे दोबारा. मैंने तो नाइल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया. आई डिड नॉट से एनीथिंग. यार एक बात बताओ मुझे, लेट्स टेक दिस. वेरी सिंपल. पता नहीं क्यों सिंपल चीजों को डिफिकल्ट करते हो. अगर यहां पर विंड आ रही है, इफ द विंड इज ब्लोइंग, if the wind is blowing, because a mountain came in the way, wind is forced to rise. rise करेगा और यहां पर कूल होके कंडेंस हो जाएगा, बारिश कर देगा. इसको क्या कहा जाता है?
ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेन। ये माउंटेन था और ये विंड क्या थी, ऑन शोर थी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज दिस विंड क्रॉसेस द माउंटेन एंड इट कम्स हियर। यहां पर नहीं करेगा, यहां पर नो रेन, इसको बोलते हैं रेन शैडो इफेक्ट, रेन शैडो इफेक्ट, यस और नो, रेन शैडो, नो रेन ओवर हियर, get that? This happens in India in Western Ghat. इंडिया में पश्चिमी घाट ये काम करता है। वेस्टर्न घाट में मुंबई में बहुत बारिश होती है बट पुणे में बारिश नहीं होती। Do you get that? Is everyone clear? So what do we need? We need onshore, we need moisture, we need barrier, three things. Yes? Take the example of X. Same situation, this wind comes here on this one, on this landmass, on Y. Will rain happen on Y? Will any rain happen on Y? Will any rain happen on Y? Y पर कोई भी होगी? Will any rain happen on Y? Why not? अरे there is wind, there is moisture also. Wind भी है, moisture भी है और on shore भी है, और क्या लोगे यार? कुछ तो होना चाहिए। सर इस विंड को कोई रोकेगा ही नहीं तो द विंड विल गो। व्हाई डज रेन हैपन? रेन हैपन्स बिकॉज द विंड हैज टू कूल एंड कंडेंस। हाउ डज कूलिंग हैपन? राइजिंग कॉजेज कूलिंग एंड कंडेंसेशन। तो कोई कह रहा है सर इजिप्ट बता दो, वो नाइल नहीं समझ में आया। अरे भाई हमने तो यही बोला कि नाइल रिवर जहां फ्लो करती है दैट्स अ डेजर्ट, उसमें तो कोई चीज, इट इज अ फ्लैट लैंड। अगर कोई बैरियर ही नहीं होगा, इफ देर इज नो बैरियर, even if this wind is coming, it will just keep on flowing. Yes or no? इतना सिंपल है यार। बोले सर वो नाइल वाला एक बार रिपीट कर देते, ठीक है, बैरियर समझ में। अच्छा, एक किसी ने क्वेश्चन कहा था सर आप अंटार्कटिका की बात कर रहे थे, वर्ल्ड मैप में हमें अंटार्कटिका देखना था। नहीं 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 नहीं, आपको वर्ल्ड मैप में अंटार्कटिका नहीं देखना था। आई डिड नॉट आस्क यू टू लुक एट द वर्ल्ड मैप। बेटा वर्ल्ड मैप से जस्ट पहले होता है अंटार्कटिका का मैप। In Antarctica map, we had seen that there is a mountain range. और मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? I was telling you that convectional rain can happen in this latitude. इसमें तो होगा ही होगा. If it happens in temperate or polar areas because of global warming, what will be the difference of convectional rainfall? So the difference would be that convectional rainfall requires heat. Lot of heat is there. But अगर temperate area में अगर convectional होगा, which is rare, कम होता है, the moisture will be less, so rainfall amount will be less. And if it happens in the polar regions, if any convection is happening because of global warming or something, it will be very very low. Even if orographic lifting is happening in polar area, because air is so cold, वहां पे rain नहीं होती है, rain is replaced by snowfall. That is what I had told, and because of internet disconnection, I am sorry, my message did not reach there. Yes, so will there be orographic rain in Western Ghat? विष्णु पूछ रहे हैं, विशु पूछ रहे हैं। I think I have answered it. विशु आपने शायद क्वेश्चन पहले पूछा। Is everyone okay? ठीक है। Did we understand through a test? अच्छा, किसी ने पूछा सर यहां पर तो होगी। Everyone कहां पर होगी? Only on this side, little bit. कोस्ट पे होती है, कोस्ट पे होगी ना, बाकी तो नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहां पर ये बनाया। एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव मेड दिस रेनफॉल ओनली ऑन द कोस्ट? कोस्ट पर होगी फिर ये उधर चली जाएगी। और यहां पर क्या है? ऑफ शोर है ना बच्चों। तो डेजर्ट के लिए हमेशा क्या होती है? डेजर्ट का वन ऑफ द रीजन इज ऑफ शोर विंड। सेकेंड रीजन फॉर अ डेजर्ट इज कोल्ड करंट्स। यहां पर कौन सा कोल्ड करंट है? एनीवन इफ यू रिमेंबर फ्रॉम जनरल ज्योग्राफी, कैनेरी करंट। और यहां पर कौन सा कोल्ड करंट है? इफ यू रिमेंबर, बेनीगुएला। अब everyone, can you see, the more we talk about this, the more we remember this, and it is a very common question in prelims to identify which is a warm current, which is a cold current. So my job is to tell you and keep repeating, keep coding in your mind all those things which we have learnt in the past. उससे क्या होता है? आपकी मेमोरी भी जाती है, श्रुति और स्मृति दोनों होती है, प्रीलिम्स भी समझ में आता है, मेंस भी हो जाता है। ये सुनो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया, सर ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों बोलते हैं?
ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों बोलते, रेड सी को रेड सी क्यों बोलते? ये क्वेश्चंस आते रहेंगे सर, हम प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आए, गूगल कर लो, ठीक है। तो प्लीज टेल अस अबाउट पामर लैंड इन अंटार्कटिका। एक और आया सर, पामर लैंड इन अंटार्कटिका, उसके बारे में अभी बताइए। आपको कुछ नहीं चाहिए उसके बारे में, ठीक है। अगर बोल दिया तो फिर बोलेगा कि क्यों आए, है ना। रिट्स यादव ने पता नहीं क्यों लिखा है अगुलहास वॉर्म, है ना। इसने शायद जनरल किया नहीं होगा जबरदस्ती उसको वो करना है। अभी आंसर नहीं करोगे तो कमेंट में आएगा कि हमने ज्वाइन ही क्यों किया। भाई सुनो, जनरल नॉलेज कौन बनेगा करोड़पति के लिए ज्वाइन नहीं किया था, आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी वर टॉट इन जनरल ज्योग्राफी, many examples were given there also, and then when we come to world geography we will apply them and we will see that these things are coming in prelims and mains also. yes or no? सर आज खाने में क्या अच्छा रहेगा, सर गर्मी में क्या अच्छा रहता है, सर्दी में क्या खाना चाहिए, सर तरबूज के बीज खाने चाहिए साथ में या निकाल देने चाहिए, नहीं बताओगे तो जान लेंगे मास्टर जी की, मत लो यार, ठीक है। प्रतीक राज कह रहे हैं पुणे में कौन सी रेन होती है, पुणे टॉप हैवी रेनफॉल एरिया है। प्रतीक राज, एनीवन फ्रॉम पुणे हेयर, एनीवन फ्रॉम पुणे हेयर, क्या पुणे में वाटर शॉर्टेज चलती कि नहीं चलती है? पुणे में टॉप हैवी रेनफॉल एरिया है, एनीवन फ्रॉम पुणे हेयर? ठीक है, पुणे में बेटा रेनफॉल शॉर्टेज होती है, तो जो टॉप हैवी वाली है ना, कभी बारिश हो गई, जो बारिश होगी उसके कई तरीके बारिश है, कई तरह की बारिश है। यस सर, हर साल सूखे की न्यूज आती है पुणे से। सर ओनली लोनावला में हैवी होती है। चलिए छोड़ दें इसको, क्लास खत्म करें, क्लास खत्म करें। तो आज की क्लास हमने यूरोप पे नहीं ली, यूरोप पे नहीं ली है। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लैटिट्यूड्स, एंड प्लीज डू नॉट सी दिस एज लाइक अरे आज यूरोप नहीं हुआ किसी के डाउट की वजह से, नो नो नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। तो एक यूरोप में मैंने आपसे कहा था कि कंट्रीज कॉन्टिनेंट के कुछ करके आएंगे, तो छोटा सा टेस्ट ले लें यूरोप का, जल्दी से यूरोप का एक टेस्ट ले लें, थोड़ा सा आपका मोमेंटम बनेगा। तो क्या करना है, पेज में नीचे एक लाइन खींचेंगे 1/3 पर, यस क्विकली। टिक मार्क लेडीज हाई हील बूट, यस। ऐसे ही बना है यूरोप। अभी डन? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट how many of you remember what latitude is this? What latitude is this? मैंने जान के लिखवाया था, ये अराउंड 30 डिग्रीज नॉर्थ। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर यहां कहीं पर आर्कटिक सर्कल आता है, आर्कटिक, तो यहां क्या आएगा बच्चों, दिस इज अराउंड, क्विकली टेल मी, क्विकली टेल मी, क्लाइमेटिकली व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज यूरोप, जल्दी से बताएंगे, क्लाइमेटिकली व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट? टेम्परेट, कंपेयर दिस विद अफ्रीका, ट्रॉपिकल,
अफ्रीका इज अ वार्म कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज अ ह्यूमिड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की जो लिविंग कंडीशंस हैं दोज आर चैलेंजिंग. हम कंपेयर करें, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अफ्रीका, व्हाई डिड इट नॉट डेवलप क्लाइमेटिकली ऑल्सो, अफ्रीका वाज नॉट वेरी वेल सूटेड. तो ऑलवेज रिमेंबर यूरोप के पास एडवांटेज है ऑफ अ टेम्परेट क्लाइमेट. जल्दी से बताइए, विच टाइप ऑफ रेन्स विल हैपन इन यूरोप? एवरीवन, विच टाइप ऑफ रेन्स विल हैपन इन यूरोप? विच टाइप्स ऑफ रेन्स विल हैपन इन यूरोप? शुभम कह रहा है 3 मिनट बचे हैं. तुम बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बंद कर दो, ऑफ ही तो करना, लॉग आउट करना. विच काइंड ऑफ रेनफॉल? ये देखो सबसे पहला किसने लिखा है उसी को क्रेडिट मिलेगा. कीर्ति चौहान, वेरी गुड. ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल सर. So the rainfall is going to be orographic and frontal. Very good. And here I am saying convectional, rare. Why rare? Because global warming. चलिए, which winds blow in this? कौन सी wind है? 30 to 60 belt. Which wind? Which wind is there? Everyone, which wind is there? Because for orographic we need wind. Which wind is there? Sir, westerlies. Oh, very good. How many of you are okay with me writing arid and arid? How many of you are okay with me writing this? Can you see that? Wind will bring moisture here. More moisture goes here. As it moves further, moisture कम हो जाएगा. Moisture, will it reduce or not? It reduces to semi-arid. And इधर आते आते तक क्या आ जाता है? This is Central Asia. यहां तक आते आते एरिड हो जाता है. Have you been hearing of Aral Sea? ड्राई क्यों हो गया है? यहां पे डेजर्ट है, काराकुम, हिजिलकुम. You don't have to write it down. But today's concept, do you get to see that just by a concept we can get to know rainfall कैसी होगी and what kind of a continent is it? It is a cool continent. लेकिन because of global warming यहाँ पर क्या हो रहा है? Heat waves are coming and as a result heat comes. Everyone simple? And no sir, mountain not there. चंकित तिवारी जी, चंकित जी, मैंने राहुल को आज बोला है, राहुल धाकड़ को, कि अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करें. संकित जी, आपको भी मैं कई बार नोट करता हूं, आप भी रिवाइज करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, आपने जाकर एटलस नहीं पढ़ी है. पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, यहीं पर कुछ आ जाएगा, माउंटेन आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा का पूरा प्लेटू है, इसीलिए आपको माउंटेन्स और प्लेटूज पढ़ाए जाते हैं. सम ऑफ यू माइट थिंक दैट सचिन सर इज जस्ट डूइंग ड्राइंग. नो, आई एम नॉट डूइंग ड्राइंग. I will decide which will be the rainy side, which will be the less rainy side through my mountains. I had a very very specific reason आप लोगों को जो mountains सिखाए हैं मैंने, because I have to do physical geography. Get that? तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी चंकित जी प्लीज रिवाइज करिएगा. चलिए टेस्ट शुरू करें एवरीवन. टेस्ट ओके. तो व्हाट एंट्रीज डू आई हैव फॉर यू? जल्दी से लिखेंगे. नंबर 1, एक आइलैंड है माल्टा आइलैंड, माल्टा आइलैंड. नंबर 2, बीएससी किया था ना, बीएससी, सार्डिनिया दे दो, सार्डिनिया कोर्सिका, बीएससी. और यहां पर हमने किया था क्रेट आइलैंड. क्रेट आइलैंड कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था, साइप्रस नहीं मिल रहा था, जो मिलेगा. साइप्रस एशिया के साथ जुड़ जाता है, दैट इज वाई. नंबर 4, आइसलैंड. नंबर 5, आयरलैंड. नंबर 6, गल्फ ऑफ फिनलैंड. नंबर 7, एड्रियाटिक सी. नंबर 8, नॉर्वेजियन सी. नंबर 9, गल्फ ऑफ गेब्स. नंबर 10, कौन सा स्ट्रेट था यार? डोवर स्ट्रेट. डोवर स्ट्रेट.
11 में एक और स्ट्रेट हमने किया था, स्ट्रेट रहता था, कील कनाल। कील कनाल 12 में इफ यू कैन टेल मी अबाउट कौन सी कंट्री थी? डेनमार्क। एक पेनिनसुला है डेनमार्क। 13 में गिव मी पेनिनसुला था, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। 14th में गिव मी बाल्कन पेनिनसुला। और 15 जिसको कुछ नहीं आ रहा वो मेडिटेरेनियन सी तो दे दो यार, मेडिटेरेनियन सी दे दो या जिब्राल्टर स्ट्रेट दे दो। 15 का टेस्ट है। नंबर 9 पे क्या है सर? नंबर 9 इज गल्फ ऑफ गेब्स। गल्फ ऑफ गेब्स, गेब्स या सिद्रा जो भी था। डू आई गिव माई आंसर? ये जो बच्चों जूता है, जूता के आगे एक फुटबॉल है, देयर इज अ फुटबॉल इन फ्रंट ऑफ द शू, दैट इज कॉल्ड सिसिली। और सिसिली के नीचे यहां पर है माल्टा। माल्टा है ना, तो दिस इज माल्टा आइलैंड। ये जो अफ्रीका में जो फ्राइंग पैन बनाते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ सिद्रा, जहां बेंगाजी है, दिस इज गल्फ ऑफ गेब्स। गेब्स कहां था? गेब्स नंबर 9। इज एवरीवन ओके विद दिस? उसके बाद हमने सार्डिनिया किया था, तो बेलिरिक, सार्डिनिया, कोर्सिका, तो यहां पर आइलैंड है सार्डिनिया, नंबर 2। नंबर 3 इज क्रेट। क्रेट इधर है, क्रेट ग्रीस के नीचे है, नंबर 3। और साइप्रस इधर है, मैंने टर्की शायद बनाया नहीं है, तो टर्की दैट्स देयर। नंबर 4 is Iceland. Iceland will be here. Number 4. Number 5 is Ireland. This is Ireland. ब्रिटेन के साथ, नंबर 5। नंबर 6 is Gulf of Finland. तो एक गल्फ ऑफ फिनलैंड बोथनिया है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो नंबर 6 इज दिस। नंबर 7 इज एड्रियाटिक सी, यहां पर जूते के साथ में एड्रियाटिक सी। 8th इज नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ ऑफ नॉर्वे, नॉर्वेजियन सी। 9th is Gulf of Gabes done. 10th is Dover Strait. This is Dover Strait. Number 10 इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रहा है। कील कनाल इज एयर, इधर से कील कनाल है। 11 12 इज डेनमार्क, ये जो जुटलैंड पेनिनसुला है ये डेनमार्क है। 13th इज आइबेरियन पेनिनसुला, ये पूरा का पूरा पोर्चुगल, स्पेन इज दिस। बाल्कन इज दिस, ये जो पूरा है बाल्कन। 14 यहाँ यूगोस्लाविया ब्रोक डाउन, and 15th is Mediterranean Sea and Gibraltar Strait. We are done with this. How many got 15? Beta Deepika, abhi bhi 13 aa rahe hain. I'm not happy with it. Please make sure you work on your atlases. And very important, I hope today's class brought some understanding about the climate, atmosphere part also, because hydrosphere to hum kar rahe hain, water bodies and everything. We'll be doing Europe again tomorrow. So tomorrow will be Europe 3. I would want to finish all the physiographic units of Europe so that you understand that also. तो Europe कल खत्म करेंगे. Sorry for that delay in the interception of internet. और बीच में आज जैसे मैंने नीले का क्वेश्चन आंसर किया, that was important, that is why I answered, but that does not stop me from advising Nile that not to see geography very mechanically. I hope you understand the letter and spirit of my advice. मेरे एडवाइस को प्लीज आपकी तरफ मान के लीजिए, आपकी फ्रेंडली एडवाइस है, मुझसे बेकार में विन और लूज मत करिए। ये मत सोचिए कि यार अरे मेरी इज्जत कम हो गई। आपकी इज्जत तब बनेगी ना जब आप सीखोगे यार। आप तो कोई नाम भी हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं। आई वुड वांट यू टू शो a greater application in this and a greater acceptance to newer techniques which I bring to you. Thanks a lot. Hope you have a great evening and I really hope that आज जो results आने चाहिए बहुत अच्छे results भी आए। जय हिंद, बाय।